we'll get started. ठीक है? Yes, sir. Okay. So if you don't mind, everyone, I mean whoever is comfortable with can switch on their videos. ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं गड्ढे में ऐसे ही बैठ के दिए जा रहा हूँ. ठीक है? Yes, चलो. sir. Okay. So most of you are comfortable in English, Hindi, right? क्या था? And हाँ, Yeah, so yes, sir. for this thing, what I have seen is like भाई मैंने भेजा था कि what is your primary language? Okay. अब देखो तुम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो. अरे प्रणव राजवीर. ओके. रिस्पॉन्ड लैटिन लैटिन. ठीक है. सो भाई अब प्राइमरी लैंग्वेज कोई पूछेगा तो अपनी कोड लैंग्वेज बताओगे ना. इंग्लिश हिंदी बंगाली लिख के भेज रहे हो मेरे को. ठीक है. So yeah, that should be a means of communication, but your primary language should be like this. So let me just conduct a fast poll, okay? कि भाई which language you guys are actually preferring. देखो, I'll tell you one ground reality for sure. ठीक है. So you might see that कि कॉलेज में तो C++ पढ़ाया जाता है. ठीक है. But the harsh truth of this industry is right now कि C++ are becoming too old. Okay. And most of the companies, like if you want to go into Samsung or something, yeah, they still have C++ positions and all. But if you are looking for a wider uh, stats and companies, if you see, अरे भाई अभी अलग ये इसी से परेशान हो जाते हैं. Okay. So then I would say you should actually get a hands on Python or Java. ठीक है. So because these are the languages which Java is not going to be like anywhere around. मतलब कोई उसका मैच नहीं है. पहली चीज मतलब हर जगह पे तुमको उसकी जॉब्स मिल जाएंगे. एंड नॉट इवन लाइक सर्विस सेक्टर वगैरह तो अलग चीज है. I'll come to that. What are service sector based companies, what are MNCs, what are product based companies and all. एंड ठीक है. तो वो उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल होता है जावा का. बट इफ यू लर्न इट्स a लाइफ टाइम स्किल. ठीक है. एंड एनीवे बीइंग इन दिस इंडस्ट्री तुम को जिंदगी भर साथ में देने वाली हो. Python is again easy to understand, easy to learn, and there is framework called as Django. Okay, just write it down, these words which I'm saying, like this Django and all. Okay, you might have not heard about it. So there is a framework called as Django in Java. Sorry, in Python, which is very famous framework. And if you learn it, मतलब काफी jobs तो उसी से खुल जाती हैं कि हाँ भाई हमको एक Django का डेवलपर चाहिए. And that's it, done. ठीक है. ओके. तो ये चीज़ है. मैं क्विक पोल कर लेता हूँ फटाफट से. आई जस्ट सेंड आउट टू यू दिस लिंक. ठीक है. इस पे डालो कि विच लैंग्वेज यू आर राइट नाउ कंफर्टेबल इन. और या फिर यहीं पे चैट में लिखते चलो. लेट्स सी. सी सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस जावा सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट. ओके. CPP पाइथन जावा. ओके. Oh, सूरज इज कंफर्टेबल इन ऑल ऑफ दीस थ्री. ओके गुड. ठीक है. संबित पात्रा बाहर कैसे चले गए भाई? अभी तो अंदर थे. ठीक है. So yeah, you see that right? Like most of the people are right now also in CPP, and that is I would not say it's a problem, but अभी अगर तुम एकदम खड़े हुए हो बीच मैदान में और अभी if you are trying to search for a job, obviously पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम करने वाली कंपनीज नहीं है यार. ठीक है. So अभी क्या कर सकते हैं उसका. सो आई वुड से बेटर लाइक तुम्हारे पास रिज्यूम में जावा और पाइथन में से इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज हो तो चलेगा. अब अगर बहुत मॉडर्न कंपनीज देख रहे हो तो भाई गोलैंग कर सकते हो. बट मतलब ये एकदम वो है कि जो अभी है चल रही हैं और चलती रहेंगी. ठीक है. ओके. ठीक है. चलो. सो सो आई जस्ट स्टार्ट इट अप. ठीक है. अभी नाउ वी हैव पीपल इन. ठीक है. So I'll just give a brief introduction of myself first, like where I come from and like मेरा कॉलेज में यार ये मैं ब्लॉक कर दिया इसके बाद भी अलग चल रहा है. ठीक है. ठीक है. So yeah. So about me is I have graduated from GGU in 2016 in computer science. Okay.
and that too from my time also there was not much of placements and all were available in the college. Okay, so what at that time we used to do is we used to go to other campuses. Okay, we used to go to this like Raipur. There are few colleges which they have this open sessions and all. We even went to Durg and like multiple colleges. There are some private colleges in around, and they actually uh, get to. I mean, they actually allow other college students also to be in their campus placement. So that is one way, I guess, and that's I think most of you people are still doing that part, right? So, but if you see there, obviously there is a trend like you will not get very high paid jobs in there. Okay, so like 3 to 5 is a range which usually they offer, and yeah, if like preliminary if you are getting started with, and that I mean you can look after for that. Okay, so now the next thing is, have you heard about e-litmus and all? How many of you have heard about e-litmus? Yeah, yes, sir. You have heard about, right? So I would say it's a great way to find good high-paying jobs. And at that time, we actually asked our faculties. Our HOD was Manish Srivastava at that time. So actually, I've asked him, like our like complete collective batch. I've asked them that can we conduct a e-litmus examination on campus, right? So we requested that, and we got the permission for that. So that path also you can try. Okay. So this is one way कि भाई e-litmus का exam होगा, and then you actually get a lot of companies from there. ठीक है. So काफी सारी companies उधर पे आ जाती हैं जो कि like 6 to 10K और 12K range में भी देती हैं, and lot of us got placement from there itself. ठीक है. Initially. ठीक है. Now I will just cover for okay, one more thing which I have seen from this feedback is तुम लोगों के pointers बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है. So जो कि अच्छी बात है. I mean majority I see wait is in like सबका सात सात तो भाई बहुत कम है. आठ नौ अलग ही भर रखा है. Okay, which is good. I mean this will eventually help your resume to get shortlisted. ठीक है. अब कोई नहीं दिखता कौन सी कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी से है, वो उनको पॉइंटर दिखता है, which is good. ऑनलाइन एग्जाम का फायदा सर ड्यू टू yeah. So Preeti, I okay, finally we got one girl. Okay, still the college hostel situations are like that, or which year you are in? Can you just provide me some insights there? Fourth year. You can actually be vocal. I mean, just turn on your mic video, and if you are comfortable in fourth year. Okay. Which branch? Sir, CSC, Okay, CSC only. Computer Science. Okay, Yes, sir. cool. ठीक है. So let's start it here. ठीक है. So ये चीज है. So lot of questions also I was getting to like how do we like what should be the actually our path for software development and all. ठीक है. So how many of you guys are started with like competitive programming and all? Have you heard about it? And um, I mean you do it on daily. Yes, sir. Okay, Yes, Pranam is sir. one. Okay. No voice, sir. Am I audible? My voice is clear, coming properly, right? Okay. Yeah, ठीक है. you're audible, sir. डूइंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर. ओ भाई प्रणव. ओके गुड. ठीक है. तो मेरी बताऊं तो मैंने तो भाई थर्ड ईयर तक नहीं सुना था. ठीक है. सो एकदम जीरो नॉलेज. कोई क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम होती है, दो चार लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं लाइक. सो बट आई वोंट से कि इट्स अ गुड डिसीजन. ठीक है. सो एज अर्ली यू कैन स्टार्ट विद इट्स बेटर फॉर यू. ठीक है. तो जितना जल्दी स्टार्ट करो. देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मत जाओ. आई वुड से go after data structures and algorithms. I know second year students won't be able to understand this thing, but third year and fourth year you guys do understand, right? ठीक है. DSLGO is one part which will actually gonna be with you for your whole career. ठीक है. लाइफ टाइम वाला चीज है वो. तो DSLGO अगर तुम कॉलेज में मास्टर कर लो तो जॉब वॉब को तो छोड़ो यार. जॉब वॉब बहुत इजीली मिल जाती है. क्यों? क्योंकि पहली बात इंटरव्यू में तुमसे क्या ही पूछेगा वो. ठीक है. यू आर जस्ट फ्रेशली कमिंग आउट ऑफ कॉलेज. दे आर गोना जस्ट टेस्ट योर DSLGO स्किल्स. दैट्स इट. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हारा अच्छा है, दैट्स इट, डन. और एक बात मैं बता देता हूँ अभी से. मार्केट में अभी आफ्टर कोविड एटलीस्ट ना जॉब्स की कोई कमी नहीं है. एंड इफ यू गोना बी गुड एट DSLGO एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल स्किल ही है अभी तो. मतलब क्योंकि लाइक अब कंपनीज के पास लोग तो आते हैं, इतने सारे हजारों लोग बैठे हैं, उसमें से कैसे जज करें कि कौन अच्छा है ना. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर इज द ओनली थिंग व्हिच दे लुक आफ्टर.
ठीक है, वो अगर सही है तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो अब आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली डोंट एक्चुअली स्पेंड टाइम ऑन शार्पनिंग दैट स्किल, बट वो बाकी दुनिया भर की चीज़ों में लगे रहते हैं, ठीक है। सो आई वुड से कि अब देखो कुछ कोई आई आई रिमेम्बर फ्यू पीपल जो भाई लगे हुए हैं, गोलैंग सीख रहे हैं, ठीक है, और भी मल्टीपल चीजें यार, अलग ही उस टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, ये बज़वर्ड्स हमेशा टेक इंडस्ट्री में सुनने सुनने मिलते रहेंगे तुम लोगों को। कोई हडूप सीख रहा है, कोई पता नहीं एनएलपी के मॉडल वॉडल दिख रहा है, ठीक है। दोज आर एक्चुअली गुड आई वुड से, बट वो तुम्हें जॉब नहीं दिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब में वो बाद में आएंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे, हायरिंग मैनेजर आएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे कि भाई उसको क्या चाहिए, क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि नहीं। सबसे पहले देयर विल बी ओनली डीएसएल को राउंड्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्ट्रक्चर्स वाले एल्गो डीएसएल में राउंड में बाहर हो गए तो फिर क्या मतलब है तुम्हारी स्किल्स का, ठीक है। तो प्राइमरीली आई वुड से यू शुड बी ऑलवेज फोकसिंग ऑन ये किसके माइक की आवाज आ रही है यार, थोड़ा सा बंद कर लो, ठीक है, फाइन। तो एक ये चीज है। तो आई वुड से कि देयर आर सम रिसोर्सेज, आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस गाय कॉल्ड अब्दुल बारी, ठीक है। ही मेक्स यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। आई जस्ट पिंग दोज इन चैट सेक्शन आल्सो, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कुछ कुछ रिसोर्सेज लिख रखे थे यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट लीड कोड बाय द वे? Yes, लीड sir. कोड का हर्ड But अबाउट, everybody, almost हाँ everybody. एवरीबॉडी नोज ना, ठीक है। हमारे टाइम पे तो लीड कोड का भी अता पता नहीं था, ठीक है। ओनली थिंग वी नो टिल कमिंग टू थर्ड ईयर वाज गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग कि लीड कोड पे जाओ, डोंट गो फॉर मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द स्टार्टिंग पॉइंट। गो फॉर इजी प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्टार्ट करो वहां से। देयर इज वन इफ यू सर्च ऑन गूगल लाइक मस्ट डू इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स का एक पेज है which is like must do interview questions. Go through it एक बार, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो उस पेज पे लिस्टेड है। once you do it, I mean my friends have gone into Microsoft just by doing that one page, ठीक है। तो मैं मतलब उस लेवल का पावरफुल पेज है वो, ठीक है। सो क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं है आई वुड से, अगर एक बार इफ यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर पेज, योर ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट इज डन, ठीक है। So this is the thing. And Java, if somebody is interested in and somebody is pursuing their things in Java, so एक काफी अच्छा blog poster है जो कि है बेल्डन की तरफ से, BELDUNG, this is also I'm posting in here, ठीक है। So search for this guy. Sir, I have one question. Do product-based companies look at coding, platform, rating to shortlist their resume? देखो यार, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। ये सब वो चीज़ ना बाद में देखते हैं। तुम्हारा एक बार रिज्यूम में देखो, जो रिज्यूम सिलेक्ट करता है ना वो यूजुअली एचआर होता है, ठीक है। तो एचआर को घंटा नहीं पड़ता रहता कि भाई इतना है क्या, वो देखता है पॉइंटर वॉइंटर तुम्हारा कैसा है, कॉलेज कॉलेज का डिग्री विग्री और ये वाला। और जो मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो तुम्हारे डायरेक्ट रिज्यूम्स, मतलब क्योंकि देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तुम किसको बोलोगे, बड़ी बड़ी एमएनसीज को बोलोगे या प्रोडक्ट बेस्ड टेक स्टार्टअप्स को बोलोगे। तो स्टार्टअप्स के साथ ये सीन है कि वो तो या तो ये एंजल डॉट को और इस तरह से मल्टीपल साइट्स हैं वहां से उठाते हैं इधर, या फिर वो तुम्हारे ये इलिटमस वगैरह, या उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हजार, मेरे पास शॉर्टलिस्ट कोई मेरे को ईमेल कर रहा है या फिर मैं उनमें से फिर शॉर्टलिस्ट करूं दो चार कैंडिडेट्स पर, वो उनके मतलब स्टार्टअप के एचआरस के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। सो बेस्ट वे टू गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इज आई वुड से गो थ्रू वन, या तो फिर भाई भर भर के एचआरस को मेल करो, ठीक है, लिंक्डइन पे पकड़ लो, बेशर्म हो जाओ, ठीक है। उनको पोस्ट करते रहो, पिंग करते रहो, एंड थोड़ा मेरा वीडियो आई थिंक इट गॉट क्लिप, ठीक है। तो उनको मैसेज करते रहो एंड मे बी दे विल रिप्लाई एंड दैट इज द थिंग टू गो। अदरवाइज गुड थिंग इज रेफरल्स। देखो आई कैन आल्सो रेफर फ्यू ऑफ यू गाइस, ठीक है, बट द एंड लास्ट टाइम आई डिड ट्राई विद दैट एज वेल। तो हुआ क्या था, आई जस्ट शेयर दैट थिंग, ठीक है। बिग बास्केट में ऐसा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, एनी पर्टिकुलर रीजन? Yes, there might be couple of reasons for that. I'll come to that in my resume section, how to build your resume and all. ठीक है, तो ये अभी के लिए रुको, मैं बताऊंगा, ठीक है। रिज्यूम बनाना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। लोग भर भर के कचरा भर देते हैं उसके अंदर, मैंने ये किया वो किया, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तुमने क्या किया है, उसके रेलेवेंसी का क्या किया है तुमने, ठीक है। सो या आई विल कम टू दैट हाउ डू बिल्ड योर रिज्यूम, ठीक है। जस्ट अगर मैं भूल जाऊं तो जस्ट कीप इन माइंड एंड रिमाइंड मी लेटर, ठीक है।
So this I'll come to, ठीक है. So I'll just start with this thing कि भाई अगर तुम सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो और फोर्थ ईयर में हो, ठीक है. So what all things you can actually do, ठीक है. फोर्थ ईयर के पास अभी कितना टाइम है, लाइक नेक्स्ट ईयर तुम्हारे पास 6 महीने हैं, एंड आई वुड से 3 महीने मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है. whenever I do my preparation for switching the jobs also, like 3 months is more than enough to like get into any company, ठीक है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ए फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डिफिकल्ट होता है यार, ठीक है. गेटिंग योर फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज डिफिकल्ट, एंड लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि भाई बाकी तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है. But I would say ki, like, the opportunities we have in 2016, there are way more opportunities right now because of this COVID and pandemic. Everyone is moving towards tech, so there are a lot of opportunities in the market, and really market is short falling on the good engineers, I would say. ठीक है. So if you are good, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा जॉब नहीं लगने का कोई कारण होगा, ठीक है. तो दिस इज वन थिंग. ठीक है. सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद, ठीक है. तो सेकेंड ईयर तो देखो यार, यू आर वेरी फ्रेश. थर्ड अपने तुम थर्ड सेमेस्टर में ही हो, एंड सो नाउ दीज सब्जेक्ट्स विल कम इन, ठीक है. तुम्हारे लिए डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, डीबीएमएस, क्रिप्टोग्राफी इन ए वे, ये सब चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, ठीक है. एंड आई वुड से लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वन, देखो हमारा कॉलेज का करिकुलम जो है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है. आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू. अभी कोई टीचर सुन रहा हो तो ठीक है, सुन ले यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है. ठीक है. तो आई वुड बी वेरी फ्रैंक विद यू. तो वो देखो, मार्क्स तो आ जाते हैं, बट उन मार्क्स का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तुम्हें जॉब नहीं मिलती है, ठीक है. तो आई वुड से उसके साथ साथ यूट्यूब पे हजारों मतलब वीडियोस मिल जाएंगे तुमको हर टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें, ठीक है. तो हमारे सिलेबस में तो चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट. अब सबको पता है नैपसैक है, और आई थिंक थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट, गुड, कैन यू पिक अप दिस कॉल. सो मतलब करिकुलम में तो सब लिखा ही हुआ है यार, कोर्स मटेरियल में अब तो सब मिल ही जाएगा तुमको, कौन से एल्गोरिथम्स करना है, बैक ट्रैकिंग करना है, और सब कुछ मिल जाएगा. बट यू नीड टू मास्टर देम ना. अभी मेरे टाइम पे मुझे याद है, मैंने जो 01 नैपसैक का कोड था रट लिया था. ठीक है. याद है आपको, क्या पता है कि नैपसैक आएगा या तो 01 आएगा या फिर वो वाला आएगा, तो ठीक है, दोनों याद कर लेते हैं, ठीक है. एट दैट टाइम आई मीन वी एक्चुअली डिडंट हैव मच गाइडेंस आल्सो, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंडक्टिंग दिस सेशन आल्सो, ठीक है. तो डोंट डोंट गो ऑन दैट पाथ, ठीक है. रट रट के नंबर आ जाएंगे, बट जब बाहर आओगे तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा. लाइक सर्चिंग एल्गोरिथम्स रहती हैं, राइट. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक गोइंग थ्रू ऑल दीज, लाइक बबल सॉर्ट रहता है, इंसर्शन सॉर्ट रहता है, बट अभी अगर कोई मेरे से एक्सप्लेन करने बोलेगा, आई कैन लाइक टाइनीली बिट एक्सप्लेन एट दैट टाइम. फिर वहां पर तुम्हें एक्चुअली क्या है, सूडो कोड नहीं, प्रॉपर कोड ही लिखना होगा, ठीक है. देयर माइट बी सम सेमीकोलंस एंड ऑल दोस मिस्टेक्स आर लाइक फाइन, बट still your code should be working. The interviewer who is taking your interview will actually go through every line and will try to understand how did you write this code, ठीक है. अब अगर तुम रट के चले जाओगे, ही माइट आस्क यू सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स आल्सो कि भाई इसको नहीं, इसको इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, एंड देन एट दैट टाइम यू विल बी ब्लैंक, ठीक है. दिस हैपेंड विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है. सो हाउ डज ए टिपिकल इंटरव्यू गोस, फर्स्ट आई विल जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है. फॉर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, दिस फॉर लाइक यू कैन, एंड ऑलवेज एक चीज वो रखना कि लाइक व्हेनेवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, बी क्रिस्प, और मतलब बिल्कुल प्रिसाइज आंसर देना. घुमाओगे फिराओगे तो देखो क्या है कि उनकी तरफ से भी रहता है कि यार इतना घुमा फिरा है बंदा अभी आते से ही, और तो वो थोड़ा अच्छा नहीं जाता. अगर तुम्हें नहीं आता है, सीधे सीधे बोल देना कि मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है इस चीज में, बट इसके आगे मेरे को नहीं पता है, ठीक है. तो हाँ, तुम्हारे रिजेक्ट होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि मे बी अदर पीपल वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर देन यू, बट अभी क्या कर सकते हो. एंड या व्हाइल गिविंग इंटरव्यूज यू विल गेट रिजेक्टेड, ठीक है. अब उसको दिल पे मत लेना. पहली चीज, यू लाइक अब पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, एक्चुअली आई कैन, I mean, I'll see if one of my friend Piyush can join in. ठीक है. So was rejected like from like 5-6 interviews initially itself. ठीक है. So 5-6 or 4, I don't remember that time. So he got very depressed, but he was the one who actually cracked the highest package from our college at that time. ठीक है. So these things will happen, but the only thing which you need to keep in your mind कि how much you are learning from that. Just ठीक है.
तो अपना जब भी इंटरव्यू से किसी से रिजेक्ट हो, क्या क्वेश्चंस पूछे थे उनको लिस्ट डाउन करो, उसके अराउंड भी आसपास के सर्कल में चीज़ें क्वेश्चंस कवर कर लेना, ठीक है। तो अगेन कमिंग बैक टू वापस से सेकंड ईयर पे, तो तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अभी से मैं कहूँगा लीड कोड एंड ऑल ये सब स्टार्ट कर दो। बाय द एंड ऑफ योर फोर्थ ईयर तुम्हें लगेगा भी नहीं कि मुझे बाहर जॉब सर्च करने की ज़रूरत है। स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे देखोगे, ये मतलब मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी तुम्हारे पास उस टाइम तक आते आते, ठीक है। तो इतना मत सोचो, मैं बोलूँगा अभी से कि भाई कैसे जॉब लगेगी एंड ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों में मत जाओ। अपने स्किल पे काम करो। इफ़ यू आर गुड एंड स्किल्ड, ऑटोमेटिकली जॉब्स तो आ ही जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ है, स्टार्ट डूइंग सेल्फ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब मान लो तुमने अभी स्टार्ट किया एंड यू लर्न जैंगो, ठीक है। जैंगो पे एक बेसिक अपना ऐप बनाओ, कुछ भी बनाओ छोटा मोटा, प्रॉपरली गिट पे डालो। हाँ, अगर गिट नहीं आता गिट सीखो। देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना विच कंपनीज एक्चुअली लुक आफ्टर, ठीक है। जैसे गिट अगर तुमने सीख लिया है थोड़ा बहुत, तो अपने रिज्यूम में डालोगे, इट डज मैटर एट दैट टाइम, ठीक है। जब तुम्हारा रिज्यूम देख रहे होंगे, ओके भाई, कुछ लोग इसी पे टिक करते हैं, हाँ भाई इसको गिट आता है, इसको जेनकिंस आता है, कुबरनेटीज में। अगर तुम ये मतलब प्लेटफॉर्म वाली जॉब्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, है ना, ठीक है। सो आई वुड से कि छोटे छोटे अपने सेल्फ प्रोजेक्ट्स पे काम करो, उनको गिट पे होस्ट करो एंड उनको रिज्यूम में डालो, ठीक है। और वो इतने मतलब अच्छे होने चाहिए कि यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट व्हेन आस्क्ड इन द मैनेजरियल राउंड, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से तुम्हारे पास काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इन सब चीजों को कवर करने के लिए, ठीक है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी लगभग यही जाता है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। सर रिज्यूम, ओके ये तो हो गया था, ओके हाँ सॉरी। तो या तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के भी लगभग सेम ही जाता है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी एक्चुअली इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तुम्हारे पास भी अच्छा खासा टाइम है अभी, ठीक हो, देखो 2 साल के आसपास है। सर डू सीपी स्किल हेल्प इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट while in job, likewise logic building? What do you mean by CP skills, by the way? CP, what is the full form of CP यार? मैं कॉम्पिटिटिव 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 ओ प्रोग्रामिंग सर। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ओके यार मैं जनरेशन जी से नहीं हूँ, मैं मिलेनियल हूँ ठीक है। तो बहुत सारे स्लैंग्स वगैरह मेरे को आते नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यार देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो तुम काम करोगे ना, आई वुड से, अब देखो व्हेन यू आर इन योर 12th, हैव यू थॉट अबाउट कि कंप्यूटर साइंस ऐसा निकलेगा? किसी ने सोचा था क्या कि कंप्यूटर साइंस ऐसा निकलेगा? नो सर। बिल्कुल है नहीं ना, सर। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे तो कंप्यूटर पे गेम खेलना पसंद था, तो मैं आ गया ठीक है। तो ठीक है, वी हैव दिस स्टोरी ना, ठीक है। तो सबका सेम स्टोरी है काइंड ऑफ, किसी को नहीं पता रहता कैसा रहेगा। तो इसी तरह से अभी जो तुम जॉब लाइफ सोच रहे हो वो इससे बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी जॉब में, अगर तुम इसका अकेला आंसर चाहते हो तो इतना बड़ा काम ही नहीं होता है ठीक है। बिकॉज काम के साथ बहुत से और भी प्रोसेसेस और बहुत सारी बिजनेस वाली चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट लॉजिकल पार्ट होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब उतना हद तक तुम्हारे इंटरव्यू तक तुम्हें साथ दे सकता है क्रैक करने में, बट काम जो होता है कंपनीज में बहुत अलग होता है, ठीक है। इट्स टोटली डिफरेंट, यू विल गेट इट व्हेन यू विल ज्वाइन इन सम कंपनी। और हर कंपनी का अलग अलग काम होता है, ठीक है। सो आई क्विकली कवर दिस, थर्ड ईयर इज डन, ठीक है। तुम लोग भी सेम चीज फॉलो कर सकते हो जितना हो सके। देखो मैं बता रहा हूँ यार, 3 से 6 महीने की मेहनत है, इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता, बट मानो मेरी बात, मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, फोर्थ ईयर में हो तो हाँ, फोर्थ ईयर में देखो अब तुम्हारे पास कम टाइम है, ठीक है, उतना ही टाइम है तुम्हारे पास, 4 से 6 महीने ही, ठीक है। इन दिस थिंग यू हैव टू सर्च फॉर जॉब, गेट ए जॉब। और देखो उसके बाद अगर गैप होने लगता है ना तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई वुड से उतना उतने उतने टाइम का वेट ही मत करना, ठीक है। एंड तो तुम लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी एक बंदे ने पूछा था ना कि रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, देखो क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ प्रोजेक्ट्स नहीं होते। अब वो क्या करें तुम्हारे जान के कि हाँ भाई ठीक है 9 पॉइंटर रहे हो, बट व्हाट इज देयर फॉर शोकेसिंग? कॉलेज के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में लोग डेटाबेस मैनेजमेंट वाला वो लाइब्रेरी बना देते हैं, तो अब वो क्या करेगा इसमें, जान के बताओ कि हाँ भैया मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। वो तुमने कहाँ से बनाया हुआ? नेट पे 50 कोड पड़े हुए हैं। एंड थोड़ा पता नहीं सुधर गया है क्या अपने कॉलेज में? भाई मैंने खुद स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था ठीक है। सो अभी क्या चल रहा है कॉलेज प्रोजेक्ट्स का? अभी तो कोविड के टाइम पे तो आई डोंट नो कैसा रहेगा। कैन समबडी फ्रॉम फोर्थ ईयर सर टेल अब मी दैट? थर्ड कुछ बेटर सर है इससे। थर्ड ईयर में 2 माइनर प्रोजेक्ट हो जा रहे हैं सीएससी के, ओके, और और फिर फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट है।
और आईटी ठीक में है, आईटी में शायद एक प्रोजेक्ट है फोर थर्ड ईयर में और एक फिर मेजर है फाइनल ईयर में। ठीक है। सो कैसे एकदम शिद्दत से मेहनत से बना रहे हो प्रोजेक्ट या ऐसे? अरे देखो फ्रैंक रहना है इधर पे यार, कोई वो बनाने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या मतलब अच्छे एकदम बिल्कुल फोकस होके बना रहे हो, कुछ सीखने के उससे बना रहे हो, या क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट करना है उससे बना रहे हो? सर पहली बार में तो प्रोजेक्ट सबमिट करके बनाए थे, दूसरे बार में अच्छे से बनाए थे और अभी अच्छे से ओके, बना रहे हैं फोर्थ ईयर। ठीक है। तो देखो ये चीजें हैं, ठीक है, विच यू विल फिगर आउट कि भाई अभी क्या करने का है मेरे को। तो मतलब अभी अगर वैसे करोगे तो देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम होगी, और कुछ लोग तो भूल जाते हैं, ठीक है? अब उनको पता ही नहीं है कि फोर्थ ईयर में मैंने खुद इंटरव्यूज लिए हैं, ठीक है? सो तो मैं लेता हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई कि तुमने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट बनाया है? बताया सर कुछ तो बनाए थे, उसमें वो डेटाबेस था, एप्लीकेशन था। मैंने कहा अभी ये क्या, मैं तुमसे वर्ड्स थोड़ी ना ये बज़वर्ड सुनने की। फिर एक बंदा मिला था मेरे को, इज लाइक कि वी यूज हडूप एक्चुअली। मैंने कहा ओके यार, हडूप तो बड़ी चीज हो गई है, ठीक है क्या किए थे हडूप से? हमने कुछ इमेजेस की थी, उनको कंप्रेस किया था। मैंने कहा इमेजेस कंप्रेस करने के लिए हडूप क्यों यूज किए थे यार? सो ये लाइक कि वो घुमा फिरा देते हैं ना, लाइक ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाइक तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो यू शुड बी कंप्लीटली क्लियर अबाउट इट कि भाई मैंने क्या बनाया है, एंड दैट वो चीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। सो व्हाट कैन यू म्यूट योरसेल्फ या, ठीक है? सो वो चीज़ एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मैनेजरल राउंड में भी बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है? बिकॉज उनको वो कम्युनिकेशन स्किल लैक करता हुआ दिखता है, ठीक है? सो या दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके? लाइक few of my friends were okay, ठीक है देखो यार, अब if you are coming from some village and all and maybe you have done till 12th in your Hindi medium, ठीक है, that is completely fine, ठीक है? अभी तक तुम यहाँ तक कैसे भी आ गए हो, बट ये इंडस्ट्री ही ऐसी है यार, you can't too much. Okay, sir, if we apply for Amazon, Microsoft on campus internships in third year, we don't get opportunity for coding rounds also. How to tackle this? यार देखो इंटर्नशिप्स एंड ऑल उनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स। अब इवन आईआईटीज एंड एनआईटीज के स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं टू गेट इन देयर फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। So yeah, this is tough, but if somebody is really interested and see ultimately यहाँ पर अब क्या आता है उनका रिज्यूम देखा जाता है अब जो बोल रहे थे ना कि भाई लीड कोड पे देखते हैं कि नहीं, तो दीज कंपनीज एक्चुअली लुक इनटू योर प्रोफाइल कि हाँ भाई बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है लीड कोड पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और हाउ many projects he have built, ठीक है? If someone is really interested and someone have done good job there, ठीक है, he can forward me the resume, I can put him for the internship program, ठीक है? So no issues there, if you want in Amazon I can put it in, but अब वो सिलेक्ट होगा कि नहीं, दैट्स अप टू द एचआर एंड, ठीक है? वहां पे मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है? सो या आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है? सो हाँ, सो वेयर आई वाज यार, ठीक है? सो आई थिंक फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को एज आई टोल्ड कि भाई काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? नाउ द हाँ, तो बहुत से लोगों को एक और चीज है जो कि नहीं रहता है पता कि भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता क्या है, लाइक मेनी ऑफ यू गाइस आस्क्ड, राइट? सो देखो 3 या 4 तरह के डेवलपर्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज अ बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, एंड देयर आर सम डेवऑप्स पोजीशंस एज वेल, ठीक है? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टर्स, ठीक है? सो आई जस्ट ब्रीफली कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इन हियर। Sir, actually, meeting end in 2 minutes. So सॉरी? meeting is going to end in 2 minutes. This whereby meeting. ओह, It has ओके, limitation of 45 minutes. Sir. So ओके, ठीक है, इसको रिजॉइन कर लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है? जस्ट एवरीवन रिजॉइन इट, जस्ट रिफ्रेश yeah, इट, आई थिंक इट विल बी बैक, ओके? yeah. Okay. Anyway, I'll also going to do that, ठीक है? Okay, so I'll just start with the backend engineer. तो मैं खुद एक backend engineer हूँ, so in these things you actually deal out with the actual business logical part, okay? जहाँ पर you have your interaction with databases and caches. Okay, before even going that, have like how many of you heard about this roadmap? Some people have actually asked me about what is the roadmap for an SD. Have you ever searched for it? Okay, Pranav. ठीक है, सो आई थिंक प्रणव यहाँ पे काफी एक्टिव बंदा है, ठीक है यार? प्रणव देखो, लव बब्बर, ओके, ठीक है।
तो मैं रोड मैप अभी 1 मिनट में शेयर करता हूँ, अगली मीटिंग में आते हैं। एक काम करते हैं, इसको रीस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। आई जस्ट कोड विद हरी, गुड। तो काफी नॉलेज है भाई यहाँ पे। अरे प्रणव भाई यार, लोगों को भी साथ भी शेयर किया करो यार, ठीक है। सो बिकॉज आई विल से कि इस जर्नी में ना तुम जितने आसपास के लोगों को और बताओगे। स्क्रीन okay, so see, you are able to see my screen? Yeah, yes, sir. Yes, Okay, sir. so if you see, this is a very good site if you want to learn and know how. Do anyone know about this site, roadmap.sh, by the way? No, sir. नो ठीक सर। है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सी, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तुम्हें पूरी अपनी जर्नी मिल जाएगी, ठीक है। तो इफ यू आर सी, पहली चीज तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है। Now, if you are interested in, as I've told, ki there are multiple roles. If you are interested in getting into front end, back end, or if you are comfortable, like ठीक है भाई, मेरे को ये फ्रंट एंड बैक एंड नहीं समझ में आता, मेरे को डेवऑप्स काइंड ऑफ रोल चाहिए, या टेस्टिंग में इफ somebody is not comfortable कि भाई मेरे को डेवलपर वाला माइंडसेट है ही नहीं, मेरा मेरा तो टेस्टर वाला है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें मिलेगा पूरा का पूरा रोड मैप जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब इसको देखते से पहली बार में डर मत जाना, ठीक है। सो नाउ एंड व्हेन यू, ये वाली चीजें तब आएंगी जब तुम, मतलब पहली चीज तो इफ यू आर लाइक एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, तो तब तो तुम्हें ये काम आने ही वाली है, ये हैव टू गो थ्रू ऑल। बट ये एकदम एड ऑन एडवांटेज देते हैं तुम्हें फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होगा, उनको सिर्फ मे बी मैक्सिमम डीएसएल को ही आएगा, बट मैनेजरल राउंड में जब तुमसे और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू आर एक्चुअली नोइंग दीज ऑल थिंग्स, दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, ठीक है। तो अब बोलोगे यार मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं, या आई डोंट नो कि ये सब क्या चीजें होती हैं। अब हाउ डज एन इंटरनेट वर्क्स, सेम टू सेम कॉपी करके यूट्यूब पे लिखोगे तुमको 50 वीडियो मिल जाएंगी। व्हाट इज एचटीटीपी, ब्राउजर कैसे काम करते हैं, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग्स कैसे काम करती हैं, सीएसएस जावास्क्रिप्ट। सो यू सी, एक बेसिक तुमको आइडिया लग गया, ठीक है। अब ओएस मैनेजमेंट में सब मेमोरी मैनेजमेंट और ये सारी चीजें तो पढ़ते ही हो, ठीक है। उनको थोड़ा एक बार और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड ऑल, राइट। Just hold for a moment, I'm getting one important call, okay? uh, yeah, yeah guys, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी लाइक ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस एंड ऑल, इसको एक बार और अपने अपनी तरफ से अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो ये देखो यार, अभी जब स्टार्टिंग में रहोगे ना, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट और ये सारे जॉब शेड्यूलिंग वाली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू विच यू लाइक लर्न इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और समथिंग। वो लोग एकदम बेसिक्स चीजें दिख रहे होते हैं तुम्हारी, ठीक है। जैसे अब अगर जावा में हो तो अबाउट द लैंग्वेज, somebody who is actually see, अभी एसेट प्रॉपर्टीज, लाइक यू शुड बी थॉरो इनफ कि भाई मैं समझा पाऊँ कि क्या होती है एसेट प्रॉपर्टीज, क्या होता है बीसीएनएफ। एंड उतना बीसीएनएफ तक नहीं जाएगा, फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ तो एटलीस्ट तुम समझा पाओ कि क्या होता है। सीक्वल क्वेरीज लिखना अच्छे से सीख लो, लाइक छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं कि इट्स लाइक कि गिवन ए टेबल, उसमें मल्टीपल फोन नंबर्स हैं, तो हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर विद डुप्लीकेट फोन नंबर्स एंड ऑल। लाइक छोटे छोटे बहुत बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। फिर आई एम नॉट श्योर इफ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कैशिंग एंड ऑल, छोटा बहुत मतलब बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज कि हाँ भाई कैशिंग क्या होता है एंड ऑल। तो इफ यू विल सर्च, इफ यू स्टार्ट सर्चिंग जस्ट द कीवर्ड्स इन हियर, सो दैट विल इटसेल्फ गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है। 5-5 मिनट के वीडियोस होंगे, ठीक है। ये साइट लो और इस पे से कीवर्ड्स उठाओ, अभी नहीं, आराम से 2-3 महीने का समय है, डेली 2-5 कीवर्ड्स उठाओ, उनके बारे में जानो कि क्या होता है, ठीक है।
सो वंस यू नो दिस थिंग्स, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलेगा हमेशा इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पीएसडीएस निकल गया है, तुम्हें और भी चीज़ों की नॉलेज है विच विल इवेंचुअली गोना बेनिफिट द कंपनी, ठीक है। सो या दिस इज वन गुड थिंग विच मोस्ट पीपल डोंट नो, मैंने भी काफ़ी लेटर अपनी लाइफ में दिस आई फाउंड इट आउट, ठीक है। सो आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस लिंक into the chat, so whoever is interested, ठीक है, just go ahead and check it out, ठीक है। so this one I want to cover, ठीक है। फिर I think YouTube पे you guys are already quite active, and you see, whenever you come across a problem or something, just search it यार, उस पे बहुत सारी videos मिल जाएंगी। I have seen Pranav was writing so many of the YouTube channels and all, so try to subscribe these channels, ठीक है। they there's one channel called as back to back sui, ठीक है। I don't know if you guys have heard about, ठीक है। So that guy actually explained these all things very crisply and precisely, ठीक है। So go through those kind of channels और एक account अपना अलग से बना लो sir। In the back end interview they also make the candidate do practical implementation in live interview, or just the theory is expert is expected। देखो, कोई तुमसे परफेक्ट कोड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जब तक वो तुम्हें एक हैकर रैंक या हैकर अर्थ का लिंक नहीं भेज रहे हैं, तब तक कोई तुमसे परफेक्ट कोड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ओके। वेट, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस। ओके, बैक थोड़ा सा लॉन्च प्लान है, विल सी, ठीक है। तो विल ट्राई टू कवर इट क्विकली, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। तो यार चिंता मत करो, इंटरव्यू में तो कोई तुमसे ऐसे बहुत हैवीली या बहुत थियोरेटिकली ही चाहते हैं, और मैक्सिमम पेन पेपर राउंड होता है, ठीक है। सो राइट नाउ आई डोंट नो, ये पेंडेमिक आई थिंक इट्स नाउ गेटिंग ओवर ओनली, ठीक है। जनवरी में जब तक तुम लोग निकलोगे तब तक वापस से ऑफिसेस खुल जाएंगे एंड दे माइट कॉल यू इन, ठीक है। घर बैठे बैठे तो और आसान है भाई, मतलब गूगल डॉक्स पे रहता है, you just need to write a pseudocode out of it, ठीक है। So mostly these are rounds like you have to be like on pen and paper rounds, ठीक है। Let me do the incremental, then you can join, sure, okay। So this is one thing and इसके बाद okay, तो ये वाला चीज मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। roadmap.sh इस पे जाओ, ठीक है। जो तुम्हें करियर पाथ अपने लिए सही लगता है, बैकएंड लगता है, फ्रंट एंड लगता है, डेवऑप्स लगता है, उसके लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, ठीक है। पीएसडीएस कोई नहीं छोड़ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर, उसके लिए 1000 बार बता दिया, लीड कोड जाओ, गिग्स और गिग्स पे जाओ, रोज 2 क्वेश्चंस करो, 6 महीने में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर तुम्हारे पास तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे वो कवर कर ले रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा एक शायद 2 या 2:15 से एक लॉन्च है, मैंने बिल्कुल स्किप कर गया, मतलब अभी वो लास्ट वीकेंड ही शेड्यूल हुआ था। सो वी आर एक्चुअली, मेरे को उस मीटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्विकली सेशंस के जो मैंने Q&A पे पूछा था वो क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ, एंड देन विल सी टाइम परमिट्स। कुछ और चीज़ें हैं वैसे मेरे पास, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, रोड मैप टू बी एसडी। तो देखो वो मैंने बता दिया है, roadmap.sh पे जाओ, कीवर्ड्स उठाओ, सर्च करो, स्टार्ट हुआ। पर ये सब तभी करना जब तुम्हारा पीएसडीएस में एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस हो जाए। तुम लोगों से कोई बहुत भारी भरकम ग्राफ के प्रॉब्लम्स नहीं एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्टली बेसिक एरेज अच्छा करो, लिंक लिस्ट अच्छा करो, बीएसटी ट्रीज पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड ओके, एंड बीएसटी ट्रीज के बाद अगर वो लगता है तो इसके बाद लाइक जो रहती है ना, जैसे कॉइन एक्सचेंज प्रॉब्लम हुई या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को यार कैसे बताऊं, प्रैक्टिस करके ही आएगा। तुम ऐसे एकदम से अगर एक्सपेक्ट करोगे कि कोई मेरे को बस एक बार समझा जाए हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। ट्राई टू प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड, ठीक है। और एक बार बनने लगते हैं तो यू विल फील कि एक टाइम के बाद पैटर्न आने लगता है, क्वेश्चंस रिपीट, काइंड ऑफ रिपीट ही होने लगते हैं, ठीक है। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस बनने लगते हैं, ठीक है। सो या रोड मैप टू एसडी आई हैव कवर्ड, ठीक है। मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यार मिस्टेक्स तो होंगी कभी कभी जब कोड लिखोगे, मैं तो आज भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ठीक है। सब कुछ लगता है कि सब सही है, फिर भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक्स तो यार ऐसे कुछ नहीं होती, कुछ भी मिस्टेक करते हो सीखने ही मिलता है,
ठीक है, बस ये है कि पढ़ाई ना करो तो वो एक मिस्टेक होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो ऐसे कोई ये वाले मिस्टेक्स नहीं होते हैं, पढ़ाई कर लेना बस, और क्या। और जिसने क्वेश्चन पूछा 8.2 पॉइंटर है भाई, मेरा आज तक 8 आया ही नहीं, मतलब 8.1 8 पॉइंट समथिंग आया है, बट या मैं कभी 8 से ऊपर गया ही नहीं। कैन वी प्लीज कनेक्ट ऑन लिंक्डइन? यार बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को अभी भेज देना रिक्वेस्ट। क्या होता है कि यार दिन में 1000 2000 रिक्वेस्ट आती है, मैं लिटरली लिंक्डइन चेक नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी लाइक पूरा भरा हुआ रहता है। सो जस्ट मैसेज मी वंस, ठीक है, तो आई जस्ट कनेक्ट। ओके, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, इस सिस्टम डिजाइन नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू फॉर एन एस डी वन रोल, ठीक है। तो देखो बेसिक, बिल्कुल मतलब अगर तुम ये आई थिंक लव बब्बर की वीडियोस देखकर आ रहा होगा, तो ठीक है। सो एक्चुअली स्टार्टिंग में कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि सिस्टम डिजाइन की नॉलेज हो तुम्हें बहुत ज्यादा। बेसिक चीजें जैसे मैंने बताया ना, कौन सा कंपोनेंट कहाँ डलेगा। अब तुम सीडीएन से डेटाबेस नहीं ज्वाइन करोगे ना, एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन शुड टॉक टू योर डेटाबेस, तो इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है क्या कंपोनेंट्स है, वो तुम रोड मैप डॉट एस पे जाओगे तो तुम्हें मतलब जब उस चीज को फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। क्या कंपन, तो बेसिक नॉलेज इज नीडेड, मतलब बेसिक भी नहीं, कोई नहीं पूछता है यार, मतलब इतना भी अगर अंटिल अनलेस यू आर गिविंग फॉर, मतलब ये राउंड ही नहीं होता है कुल मिला के, सिस्टम डिजाइन राउंड इज फॉर एसडी टू रूल्स, ठीक है। तो इतना कोई एक्सपेक्टेशन रहता नहीं है, ठीक है, बट इफ यू नो इट्स अ गुड थिंग। Should we focus more on competitive programming or development? What do you mean by development here? ये कौन ने पूछा भाई? अमन कुमार वर्मा, is he here? अमन, ठीक है, चलो। एनीवे तो जहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि डेवलपमेंट में मतलब ये पूछ रहा है कि नए प्रोजेक्ट्स बनाना है या उस चीज़ पे है, तो भाई मैंने बोल दिया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट डू इट, बट मतलब जॉब वॉब में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इट कैन लाइक बी गुड थिंग टू हैव एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज यू कैन, आई मीन बिकॉज तुमने इतने सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो तुम्हें एकदम बचकाने लगेंगे, ठीक है। So yeah, then another is one is what is your salary now? Okay, यार सैलरी वैलरी तो बता दे नहीं है, तो वैसे एक आइडिया लेना हो तो एक सेकंड रुको जरा, इससे दे सकता हूँ मैं तुम्हें। आईफोन 13 का प्राइस क्या है? ओके ओके, कहाँ गया भाई ये पेज? हाँ, ठीक है, तो भाई अभी मेरा सैलरी में मैं एक महीने में 5 आईफोन 13 खरीद सकता हूँ, टू गिव ए रफ रफ आइडिया, ठीक है। और उससे इससे ज़्यादा होता है ना, ओ हाँ यार, ठीक है। तो हाँ, अमेजन अच्छा पैसा देता है भाई, ठीक है, तो आई वुड से कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा है सर ये तो। बहुत ज़्यादा तो है। आई विल टेल यू द रीज़न ऑल्सो बिहाइंड इट, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला देखो, हम जो दोस्त थे हमारे कॉलेज के, हमारे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चलता था। ठीक है, कोई 10 आ गया तो उसको रेडी देते थे, कोई आके 15 ले जाता था, कोई 15 लिया तो कोई 25 उठा लाता था, कोई 25 लिया तो कोई 30 उठा लाता था, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे हम लोग आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रखते थे, एंड वी आर स्टिल इन दैट रेस, ठीक है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड जस्ट गॉट अराउंड 65, ठीक है, तो अब लगे हैं, देखते हैं कहाँ जाने का है। ठीक है, सो डोंट वरी, दीज थिंग्स विल फॉल इन एट द राइट टाइम, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट पे वो रखो, चलता रहेगा ये सब, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर डू यू हैव गर्लफ्रेंड इन योर कॉलेज डेज एंड हाउ डज इट इफेक्ट स्टडीज? अबे यार इसका क्या जवाब दूं मैं? तो यार ठीक है, आई मीन मेरी थी, एंड यार अब स्टडीज का तो क्या है यार, मतलब दो वे में इम्पैक्ट कर सकता है, अगर तुम्हारे ब्रांच की है तो बैठ के साथ में लीड कोड किया करो। बढ़िया आपस में कंपटीशन में करो। ठीक है, और नहीं है तो थोड़ा बोलो भाई कि टाइम में पढ़ाई वढ़ाई किया करो, और क्या यार। देखो अब रात, सर अमेजन का वर्क कल्चर कैसा है? यार अमेजन का वर्क कल्चर यार बाहर देखोगे तो यार बहुत बड़ी कंपनी है यार, तो टीम वाइज टीम काफी डिपेंड करता है, ठीक है।
तो मतलब ऐसे मैं अपनी टीम का बता सकता हूँ, बाकी दूसरी टीम का कुछ और ही होगा। बाहर में अगर देखोगे तो अमेज़न को बहुत गालियाँ पड़ती हैं, बोलते हैं बहुत हेक्टिक वर्क कल्चर एंड ऑल, बट पता नहीं, मेरे को अभी तक ऐसा लगा नहीं। ठीक है, तो या तो कहाँ था मैं? हाँ ठीक है, तो ठीक है यार, अब देखो, अब रात भर बात करोगे, सुबह सुबह फिर पढ़ाई तो होगी नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, और क्या। ठीक है, तो अगले पर आते हैं। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस एंड व्हाट डज एन इंटरव्यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस मैं बता चुका हूँ तुमको, एज एस डी वन 2 पीएचडीएस के राउंड होते हैं और एक हायरिंग मैनेजर राउंड होता है, डेट्स इट। ठीक है, अभी अगर ऑनलाइन के केसेस में तुम लोगों के साथ एक वो हैकर रैंक, हैकर अर्थ वाला देने लगे हो तो आई डोंट नो। ठीक है, बट यूजुअली दैट्स द थिंग। Sometimes while explaining the code to interviewer in the interview becomes difficult. How to overcome? तभी तो बोल रहा हूँ बे, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करो, उनको समझाओ। मान लो एक प्रॉब्लम उठाई तुमने, ठीक है, अब यू हैव सॉल्व्ड इट इन वे, ठीक है, अब ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू द अदर गाय, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा सोल्यूशन समझ पा रहा है कि नहीं, राइट। सो इफ यू डू दिस थिंग कोलैबोरेटिवली, देखो क्या होता है ना, आई नो इन कॉलेज क्या होता है ना, लोग शेयर ही नहीं करते हैं आपस में, बोलते हैं कि अरे ये बंदा मेरे से आगे निकल गया तो, है ना। सो डोंट गेट इनटू दैट मेंटालिटी। ठीक है, इंडस्ट्री में जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे, इंडस्ट्री में और भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, तुम तो बल्कि मैं तो कहूँगा अपने आसपास के लोगों को स्ट्रेंथन करो, तुम अपने आप ही स्ट्रेंथन हो जाओगे। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज इन आवर कॉलेज इंटरनली, हाँ बिल्कुल करो यार, बिल्कुल करो। मतलब इफ यू वांट टू लाइक एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, 5-6 लोगों का ही ग्रुप बना के स्टार्ट कर लो, स्टार्ट गिविंग मतलब ईच अदर क्वेश्चंस, उनको करो। अब चीटिंग करोगे तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा ही लॉस है, बट या, तो दिस इज द थिंग, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। तो फिर उनको एक्सप्लेन करोगे ना, तो फिर वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई वेयर आई एम लैकिंग एक्चुअली। ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज योर कनेक्ट विद कॉलेज कैंटीन। यार हमारे टाइम पे तो छपरी में था वहाँ कैंटीन, तुम लोगों के लिए बन गया होगा नया ठीक है, तो या यू कैन डू दैट एज वेल। आई डोंट नो इफ कॉलेजेस आर ओपन, कॉलेज यू गाइस आर बैक टू कॉलेज राइट, और नो स्टिल एट होम, आई नो होप। सर। We are still at home. ठीक है, हाँ हाँ, ब्रेड पकौड़ा बहुत खाया भाई मैंने, 10 रुपए में चाउमीन भी लेते थे उसको एकदम। ठीक है, ठीक है। सो रिज्यूम यार, आई एम टेलिंग यू ना, मैं 1 मिनट में देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो होल्ड ऑन फॉर मोमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस खत्म कर दूं यार मैं। व्हाट आर द हायरिंग प्रोसेस हो गया है, गेट और जॉब, गुड। ठीक है भाई, कौन कौन है यहाँ पे गेट वाला, बताओ जल्दी जल्दी, साथ खड़ा कर लो, कोई गेट के बारे में सोच रहा हो तो जल्दी बोलो। मैं, ओके, आलोक सिंह ठाकुर। ठीक है, तो यार देखो आलोक, गेट किस लिए देना चाहते हो, जल्दी से बताओ मेरे को, मतलब वोकल हो जाओ, फटाफट बताओ, गेट क्यों देना चाहते हो। सर सर मेरे पास है तो सोच रखा है बस माइंड में, गेट दे देता हूँ ताकि सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा हो जाएगा, बाकी मेन तो जॉब ही है। ये देखो, ये दो दो धारी तलवार मत खेलो यार, दो 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 नाव पे खड़े मत हो। एक चीज बताओ, जॉब सर चाहिए एमटेक, या नॉलेज लेनी है। सर एमटेक के लिए एमटेक के लिए नॉलेज लेना चाहते हो, या मतलब कोई सब्जेक्ट टैग में लेना तुम्हारा चाहते, टैग टैग लेना टैग। चाहते हो। यार अब टैग वालों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ठीक है, तो या इफ यू वांट टू गो फॉर टैग इट्स ओके, यू कैन गो अहेड। ठीक है, आलोक तुम्हें थोड़ा सा मतलब एक चीज, एक नाव पे पैर रखना पड़ेगा। ठीक है, जॉब या फिर गेट। ठीक है, इस तरह से अगर मतलब तुम्हें अगर एमटेक करना ही है, एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, भाई तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, मेरे को भाई ये सब्जेक्ट को मेरे को डीपली देखना है, तो यू परस्यू गेट। ठीक है, देखो गेट के साथ मैं बताता हूँ, अभी कुछ लोगों का पीएसयूज का भी होता है। ठीक है, तो गेट के साथ मैं बेनिफिट बता देता हूँ गेट के पहले। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्विकली कवर कर देता हूँ। तो गेट के साथ ये देखो, ये सीन ये रहता है कि पहली चीज़ तो पीएसयूज मिल जाते हैं, बट पीएसयूज के मिलने के लिए बहुत हाई रैंक चाहिए रहती है। ठीक है, सो वन ऑफ माई कलीग पुष्कर, ही क्रैक गेट। ठीक है, एंड बट उसका कोई ऐसे पीएसयू में जाने का मूड नहीं था, ही जस्ट वांट टू डू एमटेक। ठीक है, एंड उसका रीज़न उस टाइम पे ये था कि भाई अभी मेरे को सही से जॉब्स, मतलब हाई पेइंग जॉब चाहिए जो कि एमटेक मतलब आईआईटी से इजीली मिल जाती है। ठीक है, आईआईटी प्रोवाइड ए गुड प्लेटफॉर्म, and he was very good at I would say in studies, so he got like 149 rank that time. ठीक है, 149 or 143 I don't remember, but yeah, so yeah, so उसने मेरे जॉब के साथ में ही दिया था, पहली बार में he got around 400, and then while doing his job he gave and secured this rank. ठीक है, बट लेटर ऑन इफ यू विल कंपेयर ना, कि 2 साल बाद तुम्हें एमटेक करने के बाद जो पैकेजेस ऑफर होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे, अगर उस बंदे ने वो 2 साल
एक्सेल किया है अपनी इंडस्ट्री में तो, ठीक है, तो लगभग लगभग यू विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म आफ्टर दोस 2 years बिकॉज वी वर, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो अब अगर तुम्हें वो आईआईटी वाला लुक एंड फील चाहिए एंड यू कैन इन्वेस्ट सम टाइम इन योर सेल्फ लर्निंग एंड रियली यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट सब्जेक्ट, देन ओनली परस्यू गेट, ठीक है। अदरवाइज इसकी ये सोच के कि ऐसे ही टाइम पास के लिए चले जाते हैं एंड ऑल, तो इट्स नॉट वर्दी, ठीक है। एंड आईआईटीज का माहौल पढ़ाई लिखाई बहुत अलग होता है, विच जो अभी तुम ये वाले कॉलेज में देखा है उससे बहुत अंतर होता है ठीक है। तो और वहाँ काफी कंपटीशन रहता है, इतना आसान नहीं रहता है, ठीक है। So yeah, if you are really keen interested, तो you go for it. बट जॉब भी लेते हो तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इवेंचुअली कुछ साल बाद सब बराबर ही हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर कंपनीज लाइक Amazon और बिग बास्केट टू कम टू आवर प्लेसमेंट सेल? इफ नॉट, देन हाउ डू वी ट्रेन आवरसेल्व्स टू गेट इन, ठीक है। तो देखो यार, कॉलेज में हमारा कॉलेज इस तरह से कुछ करता नहीं है, या उतना मतलब कॉलेज का रेपुटेशन नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनीज वहां पर जाएं, ठीक है। एंड मैंने इवन बिग बास्केट में बात की थी, आई गॉट टू लाइक अभी मैंने 2-4 रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करवाए थे, आई थिंक इन योर लास्ट प्रीवियस बैच के या उस टाइम पे। सो बट अगेन दे फाउंड कि वो बच्चे तो यार चीटिंग वीटिंग कर रहे थे एंड ऑल, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, एंड दे डिडंट फाइंड द कैंडिडेट्स गुड, ठीक है। सो ये चीज़ रहता है। आई हैव लॉट ऑफ रेफरल्स बाय द वे, बट मुझे काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़ता है, बिकॉज आई मीन ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब अभी मैं 10 लोगों को रेफर कर भी नहीं सकता पहली चीज़ तो, और रेफर कर भी दूं और फिर नहीं होंगे तो अगली बार से मेरा कोई मतलब ही नहीं रहेगा उनको, मतलब वो दैट वोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड रेशियो चलता है कि इतना, मतलब अगर तुम 10 लोगों को भेज रहे हो एटलीस्ट उसमें 2 तो सिलेक्ट होना चाहिए ना। तो वो चीज़ है। इफ यू ओनली फील कि हाँ भाई आई एम डन, लाइक मैंने बताया जैसे एक पूरा रोड मैप, इसमें अगर इफ यू रियली फील कि भाई मेरा हो गया, आई कैन गो टू लीड कोड इंटरव्यू सेक्शन, 5-10 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखो, एंड इफ यू फील कि हाँ भाई मेरे से ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं, देन जस्ट सेंड मी आउट देयर रिज्यूमे, आई कैन हेल्प यू आउट विद इट, ठीक है। और मेरे ही क्यों, मतलब यू हैव लॉट ऑफ सीनियर्स इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, आई आई कैन सेंड आउट ए लिस्ट इन दिस वन इटसेल्फ, ठीक है। डॉक है उसमें अपडेट कर दूंगा मेल पे या तो डाल दूंगा, ठीक है। whom you can reach out, like few people are like, if you are targeting for big MNCs, I myself is in Amazon, Piyush is there in Atlassian, Sanju I know is in Microsoft, and yeah, like few other couple of people are there in like Fang, you'll find like some of the other guy, okay. And if you are targeting Fang, by the way, startups can also pay much better than this, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो यार देखो सीधी बात है, जाओ कोड फोर्सेस पे जाओ, हर महीने हर महीने 15 दिन में चलते रहते हैं, उनमें जाओ और पार्टिसिपेट करो। पहले मैं करता था, बट जॉब के बाद यार टाइम नहीं मिलता, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। वो मेरा नहीं, ये सभी का ये लगभग सेम ही सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, वन अनदर थिंग, ठीक है। विच सेक्टर सो मैन विच सेक्टर सो मैनी जॉब्स आर नीडेड एंड विच सेक्टर इज द बेस्ट? यार सेक्टर का क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो, मतलब मे बी बैक एंड फ्रंट एंड इस टाइप से ले रहे हो तो भाई बैक एंड गाइज आर द मोस्ट पेड, ठीक है। इसके बाद फ्रंट एंड, इसके बाद डेवऑप्स, और टेस्टिंग में डेवऑप्स में लगभग लगभग सेम पैसा मिलता है, ठीक है। रिज्यूम एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा बनाओ, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज़ पे, तो लाइक जितना अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, चाहो तो कहीं होस्ट कर लो, लाइक देयर आर फ्यू लाइक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लाइक एज हेरोकू एंड ऑल, जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ, ठीक है। मतलब सामने वाले को लगे कि अरे भाई बंदे ने हम भौकाल कर दिया, पता नहीं क्या बना दिया, आओ इसको तो देखना पड़ेगा इसको बुला के ठीक है। सो दिस थिंग, व्हाट आर योर सजेशंस ऑन प्रिपरेशन फॉर बैंक? यार फोर्थ ईयर में आके संतोष भाई को लग रहा है बैंक जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे दोस्त बैंक में भी गए हैं, तो यार ये मेरे एकदम नॉलेज बेस के बाहर का चीज़ है, ठीक है। तो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम सम अदर गाय हु इज़ ऑलरेडी इन दिस बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल। मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बैंक का प्रिपरेशन करते हैं एंड ऑल, ठीक है। हाउ टू प्रोसेस ऑफ जॉब, संजीव भाई, हाउ टू प्रोसेस ऑफ जॉब क्या मतलब हुआ इसका?
ठीक है, तो आई थिंक पता नहीं, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बट हाँ, मैंने जॉब का इंटरव्यू प्रोसेस तो बता दिया। आई थिंक ही जस्ट वांट टू आस्क इंटरव्यू प्रोसेस ओनली। ठीक है, Sir, you have launched on 2:15. It's 2:06 now. हाँ हाँ, डोंट वरी यार, मैंने उसको बोल दिया रुको भाई, मेरे लिए Okay, है। sir. ठीक है, नो इश्यूज। सो या स्किल्स नीड्स फॉर प्लेसमेंट सब पूरा कवर कर लिया है भाई। स्किल्स क्या क्या चाहिए, रोड मैप फॉर डिसेंट पैकेज इमीडिएटली, रोड मैप बता दिया है भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। PSDS और ये रोड मैप डाटा एसएच पे चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू फॉलो टू क्रैक अमेजन SD एग्जाम? सेम थिंग्स, नथिंग डिफरेंट यार, सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, विच ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर वी कैन स्टडी? भाई यूट्यूब पे जाओ, हजार सब मिल जाता है। ये सब मैं भी बता रहा हूँ, ये सब मैंने भी यूट्यूब से देखा था। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च करो, उसके मिल जाएंगे तुमको वीडियोस। बैक ट्रैकिंग से लेके डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, सब मिल जाएगा। CS डोजो क्या मैं सर्च करता हूँ, वहीं से मिल जाते हैं। कोई ना कोई चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। एक अलग अकाउंट रखता हूँ यूट्यूब के लिए, बाय द वे मैं एक छोटा सा प्रोसेस और फॉलो करता हूँ, अलग अकाउंट रखता हूँ। और जब बैठता हूँ तो वही अकाउंट खोलता हूँ, क्योंकि साले सजेशंस वरना वही गाने के और इधर उधर के देते रहते हैं। स्कोप इन ब्लॉकचेन इंजीनियर। ठीक है भाई, देखो ब्लॉकचेन अभी काफ़ी हाइप में है। ठीक है, 2017 में भी था, जब पता हो तो, जब मार्केट बढ़िया चलता है, जब बिटकॉइन उछलता है तो ब्लॉकचेन का मार्केट चलता है। फिर बाद में डाउन आ जाता है जब बिटकॉइन डाउन होता है। तो उस टाइम पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी, उस टाइम पे काफ़ी बड़ी कंपनीज खुली थी। ठीक है, बट मतलब उस टाइम के लोगों का थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस है। बट ब्लॉकचेन में यस, आई मीन यू कैन एक्चुअली, देखो यार, मैं कहूँगा कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मास्टर करो। ब्लॉकचेन ऐसे तुम्हारा एक साइड का फोटे हो सकता है कि अच्छा है, आई नो अबाउट द ब्लॉकचेन एंड ऑल, बट यू शुड कैटेगराइज योरसेल्फ इन दीज स्ट्रेटेजी, मतलब लाइक इन चारों में से कुछ में अपने आप को फिट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये तुम्हारा एक मतलब एक्स्ट्रा एक वो हो सकता है। ठीक है, कि भाई मेरे को ये भी आता है। ठीक है, and there are multiple, if you are really interested in blockchain, there are multiple companies for that, but you will find only like अभी स्टार्टअप वाली कंपनीज मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लॉकचेन में काम ज़्यादा कर नहीं रही है। ठीक है, और कर भी नहीं है तो मतलब जॉब प्रोफाइल्स और जॉब्स बहुत कम है। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल द एग्जैक्ट पाथ फॉर विच फॉर फास्ट प्रिपरेशन? कुछ नहीं होता भाई, टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लगेगा। ये तुम्हारा सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है कि रात को पढ़ के कल 60 लूंगा, 60 में से 40 आ जाएंगे। ठीक है तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। if we haven't got a good package, is it better to go for gate or get placed और later get placed in a good company? दोनों सिनेरियोस में मैं बता चुका हूँ कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो सकता है मेरे से अभी भाई, और मैं देखो, पता नहीं कॉलेज के बाद थोड़ा सा पढ़ना, इट इट बिकम्स डिफिकल्ट एटलीस्ट फॉर मी। तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पा रहे हो, अच्छा तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गेट से ऑब्वियसली अगर इफ यू आर गेट इनटू IITs, तुम्हें एकदम अलग माहौल मिलेगा, यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑब्वियसली गुड प्लेसमेंट्स एज वेल if you perform in well there. Sir, does your job allows more people interaction? अबे काम कैसे करूंगा मैं, काम तो करना पड़ेगा ना, लोगों के साथ बात करने पर ही तो काम होता है ना? सो यू हैव योर ओन टीम्स एंड या पीपल इंटरेक्शन तो होता है बाहर। अब माइन इज नॉट सर्विस बेस्ड कंपनीज, तो मैं ऐसे क्लाइंट से बात नहीं करता हूँ, बस यही है और क्या। ठीक है, विच व्हाट इज द रोड मैप ऑफ गेटिंग, अबे रोड मैप्स बता चुका हूँ, टॉप MNC सब हो गया है। Side topic other than DSA frequently asked by Amazon for SD role? कुछ नहीं पूछते भाई, Amazon वाले PSDS करते हैं और कुछ नहीं, उनको और कुछ से मतलब ही नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन जब इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हायर रोल्स। ठीक है, व्हाट शुड आई लर्न टू गेट इनटू? अच्छा, मैं अमेजन में हूँ यार, इसीलिए ये सब अमेजन के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्या? ठीक है, तो यार देखो, कोई कंपनी ऐसा अलग नहीं होती है। ठीक है, लाइक सब में कॉमन ही चीज रहती है। ठीक है, किसी में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी में, हाँ मतलब फैंग में थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस हार्ड हो जाता है, बस एक 6 से 7 राउंड लेते हैं। ठीक है, तो बाकी कंपनीज में 2-2 राउंड में काम हो जाता है। तो बस ये है, और कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आता है। नो जस्ट वांट टू हियर योर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस हमने बता चुका हूँ। ठीक है, लाइफ एट कोर कंपनीज लाइक मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, एयरटेल, जियो, इज जॉब सिक्योरिटी प्रॉब्लम देयर? ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ECE। ठीक है,
तो देखो मीडियाटेक कॉलकॉम में मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो अम, जैसा उनका मैंने सुना है मीडियाटेक में थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, कॉलकॉम में अच्छा है। और जियो में भी है। जॉब सिक्योरिटी का तो यार किसी ने ऐसा मेरे को नहीं बोला कि जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कहीं पर भी, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इज इट बेटर टू गेट ए जॉब आफ्टर बीटेक और डू एमटेक? ये बता चुका हूँ भाई मैं। व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमटेक? यार यहाँ ना इस टेक इंडस्ट्री में मतलब बस मतलब डिग्री कोई नहीं देख रहा है यार आजकल। केमिकल वाला मेरा जो डायरेक्टर है वो केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था डिग्री का ऐसे कोई हार्ड वास्ट वैल्यूएशन नहीं है अभी तो। बीटेक कराओ एमटेक कराओ, उसको उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। बस स्किल सेट्स का बोलबाला है अभी तो फिलहाल, तो यही माहौल चल रहा है, तो अभी का भविष्य का पता नहीं यार, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? अभी मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो बताओ, मैं सर वन रिज्यूम के लिए क्वेश्चन, बता कैन आई देता हूँ। आस्क वन क्वेश्चन? हाँ हाँ बताओ बताओ पूछो। सर अगर इंटर्नशिप्स नहीं किए हों तो मतलब कि तो सिलेक्शन सेल्फ प्रोसेस और प्रोजेक्ट्स इन करो, सब? सेल्फ प्रोजेक्ट्स करो, ओके। मैंने वही तो बोला। इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ प्रोजेक्ट करो, अपने हिसाब से कुछ बना लो, ठीक है। यूट्यूब पे ओके सर्च सर। करो सेल्फ प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या अच्छे रहेंगे, पाइथन में जैंगो में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डालो चल रहे उनको हैं सर। उनको रिज्यूम में डालो। यस। एनी अदर? और देखो एक बात मैं बताता हूँ, अब ये भी अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, देखो ऐसे। ओके चलो एक क्विक क्विक पोल बताओ मेरे को फटाफट से, यहीं पे डालते रहना। व्हाट इज योर जॉब एक्सपेक्टेशन, लाइक व्हाट इज द सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग? कि भाई मतलब 0 से 5 लाख, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। सर 15 ओके से 20। 15 से 20 ओके, और बताते जाओ जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सो फ्रेशर जितना में। ज्यादा मिले उतना अच्छा सर, ओके कम किसको चाहिए। ओके गुड। और बताओ 7 to 9, 12+, 8 to 10 इनिशियली, 5 to 10, +20। 20+। यस ट्वेंटी सर। प्लस देखो 20+ तो तुम्हें सिर्फ यही दे पाएंगी बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है। फ्लिपकार्ट 1 लाख पर मंथ प्लस मिनिमम। देखो 1 लाख प्लस तो तुम्हारा 13 के आसपास में हो जाएगा। अभी तो चलो तुमने टैक्सेस वैक्सेस नहीं देखे हैं तो अलग मजा आता है उस जिंदगी में, ठीक है तो आ, ठीक है। बाय द वे बता देता हूँ, लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस नो कि 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता 30 years sir. है ना। तो इट्स जस्ट सर लाइक। आपका स्टार्टिंग पैकेज क्या था? अच्छा चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पैकेज मेरा था 5.5, ठीक है। और मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, ठीक है, इनिशियली अपनी ज़िंदगी में। और जो मेरी पहली कंपनी थी वो इतनी आरामदेह थी, मैं 12 बजे ऑफिस जाता था, ठीक है। तभी क्या बताऊँ 12 बजे ऑफिस जाता था, 1 बजे लंच ब्रेक पे चला जाता था, 2 बजे नीचे से घूम घाम के आता था। 2 बजे के बाद आके बैठते थे, थोड़ा सुस्ताते थे, काम करते थे, कुछ देख लेते थे उस टाइम पे। 5 बजे टीटी खेलने जाते थे, 5 से 6 लगभग टीटी खेलते थे, और 5:45 से लगभग वो मिल जाता था हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स खा के घर वापस आ जाते थे ठीक है सर कौन सी कंपनी थी ऐसे ये फ्लेक्सिबल? ये कंपनी थी सोनस नेटवर्क्स, ठीक है, नाउ नोन एज रिबन कम्युनिकेशन। बहुत से सीनियर्स अभी भी वहीं पर आराम फरमा रहे हैं, ठीक है तुम्हारे तो आराम नहीं फरमा रहे, मतलब उनका चॉइस है, इट्स लाइक दैट कि जिसको रुकना है, मतलब। बट हाँ मैंने पर्सनली बहुत आराम किया वहाँ, ठीक है। तो या बट आई मैं तुमसे बोलूंगा अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए स्टार्टिंग में, तुरंत उधर से अपना बैग पैक करके निकल लेना, ठीक है। दिस दिस एक्सपीरियंस ये वाला जो है ना तुम्हारे साल खा जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्योंकि तुम कुछ सीखोगे नहीं, फिर अल्टीमेटली बाद में स्विच कैसे करोगे, ठीक है। और एक कंपनी में पड़े पड़े तुम्हारा पैसा नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये हार्श ट्रूथ है। तो क्या होगा, 5%, 10%, 15% हाइक हो जाएगा। अब अगर तुम 5-10 लाख से स्टार्ट करोगे तो कोई तुम्हें 10% भी हाइक देगा, 1 लाख रुपए बढ़ेगा। और 10% हाइक काफी ज्यादा माना जाता है ऐसे नॉर्मली बोलोगे ना, नॉर्मल कंपनीज में तो 10% काफी ज्यादा हो जाता है। तो अभी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हो ओवरऑल सैलरी। बट स्विच करोगे तो एटलीस्ट 30-40% का रेस होता है, ठीक है। तो अब पहले आ जाओ, उसके बाद ये सब चीजें कर लेना। चिलैक्स लाइफ, हाँ भाई यार काफी चिल जिंदगी जी है मैंने ठीक है, इनिशियली 2 साल, फिर जब समझ में आया कि भाई यहाँ तो बैठे बैठे हो जाएगा अपना काम, तो देन आई मूव्ड आउट टू बिग बास्केट, एंड फिर वहां से थोड़ा सा लाइक लास्ट 3 इयर्स हाँ थोड़ा अलग जर्नी में लगे रहे, ठीक है। एनीथिंग एल्स बताओ। कुछ भूल गया हूँ मैं? रिज्यूम के लिए मैं बता दे रहा हूँ, देयर इज लाइक 7 सेकेंड रिज्यूम, ओके, 7 सेकेंड रिज्यूम।
या 7 सेकंड रिज्यूम, या सर्च फॉर दिस कीवर्ड, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा कि क्या किस तरह से रिज्यूम बनाना है। मेरे रिज्यूम का लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है, ऑन दैट ईमेल थ्रेड, ठीक है। सर अभी आप कौन से सिटी में प्लेस्ड हुआ? मैं मतलब जॉब तो बैंगलोर में करता हूँ, मैं अभी अशोक नगर एमपी में हूँ। सर इट हैपेंस क्वाइट फ्रीक्वेंटली कि जो 2 कॉलम रिज्यूमे, मतलब मेरा रिज्यूमे 2 कॉलम रिज्यूमे फॉर्मेट में है, फॉर्मेटेड है, हम्म, तो कई सारे ऑफ कैंपस रोल्स में अप्लाई करते हैं, तो जो उनका जो सॉफ्टवेयर स्क्रीनिंग होता है वहां पे निकल जाता है, तो सर बिल्कुल सही बात है। टू कॉलम किसने बनाने बोला तुमसे भाई? प्लेन बनाओ, सिंपल, ऊपर से रीड करता हुआ नीचे तक आने वाला, अच्छा ठीक है। ओके। आईआईटीएंस का यार एक काम करो ना, आईआईटीएंस का रिज्यूम देखा करो, ठीक है, तो मिल जाएंगे। लाइक सर्च फॉर एनी रैंडम नेम, शुभम जैन आईआईटी, तो तुमको आईआईटी बॉम्बे का एक बंदा मिल जाएगा, उसका रिज्यूम मिल जाएगा। देखना, उनका उनका सबका सिमिलर फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट में लिखो, ओके सर। ठीक है। पर यही तो मस्त बात होती है, उनके में सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही भरे होते हैं, तो सामने दिख रहा होता है। अब तुम लोग लिखना स्टार्ट करोगे, कुछ किया नहीं है, 4 लाइन लिख दोगे कि भाई मेरा C++ किया, जावा किया, ये आता हुआ था, अब इसके बाद क्या लिखोगे? वर्क यस एक्सपीरियंस सर। है नहीं, अब क्या हो गया? इतना सा रिज्यूम बन गया स्टार्टिंग, अभी क्या करोगे उसका? ठीक है, तो इसलिए प्रोजेक्ट्स करो ताकि तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ हो, और सिर्फ लिखो मत, उसमें कुछ करो भी। सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एक और चीज सुन लो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आता है किसी अच्छी चीज में, ट्राई टू राइट रिसर्च पेपर्स, ठीक है। कुछ भी करो अनशन, मतलब अनशन तो नहीं, कुछ भी क्या ही करोगे मतलब ठीक है, तो गो टू द एचओडी सर, मैंने अपने टाइम पे 2 रिसर्च पेपर्स किए थे, ठीक है, तो बट या अगेन अप टू यू, ठीक है, थोड़ा अच्छे से वो करो, फैकल्टीज माइट हेल्प यू आउट विद इट, ठीक है। मुझे मनीष श्रीवास्तव सर ने काफी हेल्प किया था उसमें, ठीक है, इवन पीवीवी जो रिसर्च पेपर कर रहा था सब उन्होंने दिया था, ठीक है। सो सेकंड थर्ड ईयर तो स्टूडेंट्स, या टॉपिक क्या था? क्रिप्टोग्राफी यार, आई वाज टू इंटरेस्टेड इन क्रिप्टोग्राफी, तो या क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी you'll get to know like in the later पढ़ stages, लिया पढ़ लिया ना, ये सर पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो या डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, अब तुम्हें पता है ना, जब एईएस डीएस चलता है तो बहुत सीपीयू खाता है वो, ठीक है। तो यस सर। इफ यू कैन सजेस्ट ए गुड वन, जस्ट हैव, यार रिसर्च पेपर में कुछ भी नहीं करता, मतलब तुम अगर बेसिक रिसर्च पेपर क्रिप्टोग्राफी में चाहते हो तो जस्ट सीपीयू मेमोरी की मैट्रिक्स कंपेयर कर डालो 10 एल्गोरिदम्स के, जो बेस्ट एल्गोरिदम्स हैं 128 160, मतलब किस कौन सा ऑप्टिमल रहेगा, जस्ट हैव समथिंग लाइक दैट। जरूरी नहीं होता कि कुछ रिसर्च पेपर में तुम कुछ नया ही करो, जो एग्जिस्टिंग चीज है उनको कंपेरिजन इज आल्सो कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। सो या सो ये भी कर सकते हो। और हाँ सर, ये क्वेश्चन था कि हम्म, जो मतलब आपके बैचमेट्स हैं, हाँ आपने हाँ मतलब टेक टेक में रहे आप, तो हाँ आपके हाँ, बैचमेट्स कुछ गए होंगे मैनेजमेंट फील्ड में, मतलब एमबीए वगैरह की। यस 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 बिल्कुल तो गए। आपका और उनका क्या डिफरेंस रहा, मतलब टेक में रहना सही है कि फिर मैनेजमेंट में जाना सही है, और फिर यार ये क्या तो, डिफरेंस पड़ता है आपके लेवल पे अभी? हाँ ठीक है, तो देखो, अब देखो यार, जॉब करते टाइम पे तुम्हें एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, अगर तुम्हें जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, ठीक है। अभी अगर कोई मुझे मैनेजमेंट रोल में डाल दे, ठीक है, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है फील यार। मैं लास्ट बिग बास्केट में मैं 3 टीम, मेरी अंडर 3 टीम रिपोर्ट करती थी, ठीक है। पर मुझे लगता था यार मेरे को यार कोड करना है, मैं उनके साथ बैठ के कोड करने लग जाता था बट अब वो मेरा काम बचा नहीं था वहां पे उतना, एंड तो मतलब मेरे को पर्सनली वो फील अच्छा नहीं लगता था। बट अब किसी को मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है भाई, वो उसको ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पसंद नहीं आती है, तो दे लाइक दैट मतलब। बट यार अब किस चीज में पूछ रहे हो, सैलरी वाइज पूछ रहे हो क्या? हाँ मतलब वो उसका भी एस्पेक्ट हाँ जानना था, ठीक है, और चलो सैलरी दोनों से। एक्सपेक्ट बता देता हूँ तुमको। देखो, तुम भले ही आईआईएम से कर लो, ठीक है, बट आज का जो माहौल है उसमें तुम्हें एमबीए वगैरह में भी टेक तो जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम प्रोडक्ट मैनेजर या टाइप मार्केटिंग मार्केटिंग जा रहे हो तो बात और है, मार्केटिंग में काफी पैसा है, ठीक है, बट वहां पर तुम्हारा पैसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क, तुम क्वालिटी वर्क कितना कर रहे हो, कंपनी के लिए कितना वो कर रहे हो, तो इट्स लाइक तुम्हारा वेरिएबल कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड टेक में तो यार देखो, अभी मैं कैसे बताऊं यार, टेक में अभी बाढ़ आई हुई है, अलग ही पानी बरस रहा है, पैसा बरस रहा है मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुंह खोलो, जाके जो मांग लो वो दे रहे हैं ठीक है। स्टार्टअप में जाओगे तो अभी ठीक है, मतलब स्किल सेट्स भी हैं, मैं मान रहा हूँ, बट सबका पैकेज जो भी इंडस्ट्री में था सबका एटलीस्ट 2x 3x हुआ है ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है। मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं बचा है जिसका 2x 3x ना हुआ हो, जो इवन लोअर पैकेजेस पे थे, दे आल्सो गॉट वेरी गुड रेजेस एंड ऑल, ठीक है। तो या
अभी अब क्या बोलूं मैं, टेक में बरस रहा है तो बरस रहा है, अभी माहौल चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं कहूंगा बेवकूफ होगा जो छाता लेके घर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो या एंड जो मैंने बताया कि एमबीए करने के बाद भी कुछ लोग प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह जो बने हैं यार, उनको भी देखो सीक्वल इक्वल सीखना पड़ रहा है, क्योंकि अब टेक के बिना कोई मैनेजर भी वो एमबीए वाले नहीं मैनेजर होते हैं, सब टेक्निकल मैनेजर्स ही होते हैं। ठीक है, हाँ सर, वो जैसे आप आगे चल के मैनेजमेंट हाँ रोल में आ जाते हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है वगैरह, हाँ तो हाँ, आ ऐसा जाते हैं, कुछ बट टेक मैनेजर चाहिए ना भाई। है? एक सेकंड बताओ, इन 5 मिनट्स बस भाई बोल रहे हैं, भाई आ जाओ अब, बहुत हो गया है। हाँ, ठीक है, तो देखो क्या है अब टेक मैनेजर्स की, क्योंकि देखो एक बात बताओ। तुम्हारी एक मैं बढ़िया आराम से, हम लोग लाइक प्रिंसिपल इंजीनियर है, टीम लीड है, वो लाइक वो सब बैठे हुए हैं अपने 7 7 8 8 साल एक्सपीरियंस, राइट। अब कल को एक मैनेजमेंट वाला बंदा आता है, वो बस अपना मैनेजमेंट का काम कर रहा है कि अरे इसको ये टास्क, अबे टास्क समझेगा नहीं तो क्या असाइन करेगा। उस मैंने बोला कि मेरे को एक ये डीबी कनेक्टर्स लिखना है, इसमें ये करना है और ये वाला, उसको समझ में घंटा नहीं समझ में आ रहा है। और उसको क्या पता कैश इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, कि डीबी में ये वाले में मेरे को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो कितना टाइम लगेगा, इस पर्टिकुलर कोड को लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो अब तुम बताओ, एक स्टार्टअप या एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज प्रेफर कर सकती हैं इस टाइप का मैनेजर, नो है ना। तो अभी क्या है कि इट्स लाइक कि अप स्किल लैडर हो रहा है, कि अब एक इवन फॉर SD2, लाइक व्हेन आई विल बी मूविंग आउट टू SD3, सो मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे, ईदर आई कुड बी अ टीम मैनेजर और आई कैन स्टिल वर्क एज लाइक मल्टीपल टीम्स का पीई की तरह काम कर सकता हूँ, प्रिंसिपल इंजीनियर की तरह, जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ। आई वोंट कोड दैट मच, लाइक 10% और 20%, बट मेरा इन्वॉल्वमेंट टेक में ज्यादा रहेगा rather देन मैनेजमेंट। सो दैट्स इट, इट्स अप टू यू कि भाई तुम्हें क्या बेटर लग रहा है। ओके सर। और बताओ, और कुछ कि सर यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए ना रिसर्च पेपर। अबे कहीं कर दो, मतलब तुम बताओ यूजीसी जर्नल वाला हो या वो हो। अभी मैंने तुमको बोला कि मैंने रिसर्च पेपर लिखा है, या तुमने जाके देखा क्या कि कौन सा लिखा है या क्या किया है, कौन से उसमें जर्नल में पब्लिश हुआ था, है ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि यार ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ वगैरह कुछ भी काम करके तो वैसे भी नहीं होता है, पब्लिश पब्लिश हुआ है मतलब कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जस्ट मतलब उतना काफी रहता है, तो तुम मतलब सामने वाले को ये थोड़ी ना देखना है कि तुम क्या करे हो, कहाँ डाले हो पेपर एंड ऑल। उसको ये है कि भाई जो तुमने किया है वो, मतलब वो तुम खुद भी समझ पा रहे हो कि नहीं। अब तुम किसी और का पेपर छाप के लिख दोगे, फिर बाद में जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें होगा नहीं। IEEE में थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ यार मेरा IEEE का ही था, जेवियर वाला। तो हाँ उसमें मुश्किल होता है भाई, यस, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पैसे वैसे भी उसमें खूब लगते हैं, 14 15 हज़ार रुपए लगे थे उस टाइम पे, आई डोंट नो। तो या अब वो सब यार कॉलेज सर फंड कर देगा, चिंता मत करो उन सब की ना ज्यादा। एक क्वेश्चन सर, हम्म, जैसे प्रोजेक्ट्स आपने बताया कि प्रोजेक्ट्स बना होगा इंटर्नशिप्स या ऐसा नहीं है तो सर प्रोजेक्ट्स भी मतलब जैसे एक होते हैं प्लेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हम लोग ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ कर लिए हैं। अब हाँ। जैसे मतलब मशीन लर्निंग एंड टॉपिक्स पे भी हाथ लगाना कुछ जरूरी है कि मतलब नहीं है करें या भाई, करें? अरे देखो यार मैं तुमको सीधी बात बताता हूँ, अभी ये सब चल तो रहा है बढ़िया से, बट देखो यार मशीन लर्निंग वगैरह के प्रोजेक्ट सब तुम्हारे पास हार्डवेयर है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट चलाने के लिए? नहीं सर, डेफिनेटली नहीं नहीं है ना। उतना लार्ज तो स्केल पे नहीं। नो हाँ, सर। तो फिर अभी कैसे चलाओगे, कैसे अपनी स्किल को बेटर टेस्ट करोगे, यस। है ना। तो टेंसर वगैरह के हैं, ऑल्दो गूगल के हैं काफी सारे हार्डवेयर अवेलेबल, बट करना चाहो तो या इट्स अ गुड पॉइंट, अगर करना चाहो तो। बट फिर देखो क्या होता है ना, जो तुम एक चीज है, इसलिए आई वुड से कि पहली जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से तुम्हारा एक्चुअली डायरेक्शन सेट हो जाता है। अगर पहली जॉब तुमने टेस्टर की ले ली है, तो एक बात बताओ, तुम 1 1.5 साल तुमने टेस्टिंग में जॉब कर ली, फिर मैं तुम्हें क्यों एक SD रोल दूं, है ना। तो यस। पहला स्टेप बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है। तो या दिस इज वन थिंग। प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड मैं एक और एकदम क्रिस्पली बता देता हूँ। सर्विस बेस्ड में ये है कि तुम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हो, क्लाइंट्स होते हैं, मतलब हर वक्त 4 6 महीने में क्लाइंट्स चेंज होते रहेंगे। एंड प्रोडक्ट बेस्ड में एक ही कंपनी रहती है, तो उसमें अलग माहौल रहता है, तुम यू गेट बेटर एक्सपर्टीज इनटू दैट। प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड में यू लाइक लॉट ऑफ लर्न, लाइक लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज यू लर्न, दैट्स इट। हेलो सर। हाँ बताओ। गुड आफ्टरनून सर। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन एक था सर कि शुरुआती एज अ फ्रेशर किसी को सर्विस बेस में जाना चाहिए या प्रोडक्ट बेस में या स्टार्टअप में, मतलब सीखने के लिए ज़्यादा? अच्छा देखो, तुम्हारे पास अगर ऑप्शंस हैं तो आई वुड से
अच्छे स्टार्टअप में जाओ, ठीक है, तुम्हें पूरी वाइड पिक्चर समझ में आ जाएगी। फिर 1-2 साल बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। सर्विस बेस्ड में मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बता देता हूँ अपना रीज़न क्या है। तो इफ़ समबडी लाइक्स इट तो वो जा सकता है, ठीक है। सर्विस में क्या है, पहली चीज़ तो टाइम का रहता है, तुम्हें 9 घंटे 10 घंटे बैठना होता है, 9 सवा 9 घंटे का टाइम ट्रैकिंग चलता है, ठीक है, वेदर इट इज एसेंचर, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और ये सारा, ठीक है। मेरा यहाँ पे घंटा कोई टाइम नहीं है, मैं रात को 12 बजे करूँ 2 बजे करूँ, कब कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सैलरीज वो उतना ऑफर नहीं कर सकते जितना प्रोडक्ट करती है, ठीक है। तो ask your guys like I mean those friends who are in service based companies or your seniors, मतलब वो एक बेसिक सैलरी रेंज में ही घूमते हैं, ठीक है। इतना पैसा जितना प्रोडक्ट दे पाता है या स्टार्टअप्स दे पाते हैं वो नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस। ओके, ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट से आया है, उतना ही में डील हुआ है, जैसे मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है। फिर होता है थोड़ा सा कहीं कहीं पे थोड़ा सा बहुत ओवर स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म वाला रूल रहता है भाई, है ना। तुम जाओगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी वगैरह, यू विल गेट टू नो, ठीक है, थोड़ा ऐसा ऐसा। तो यहाँ मैं एकदम प्रॉपर चड्डे में और चप्पल में जाने वाला इंसान हूँ, ठीक है, एकदम तो वो मेरे को पर्सनली सूट नहीं करता है, ठीक है। शर्ट वर्ट पहन के जाना ऑब्वियसली, अब यार क्लाइंट फेसिंग कंपनी है तो क्लाइंट से बात करना है तो एकदम वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, तो अपने को वो सब सूट नहीं करता है। और तो बाकी ये रहता है कि भाई डेडलाइन वेडलाइन रहती है काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भी रहेगी ऐसा नहीं है, बट यहाँ की डेडलाइंस क्या है, देखो तुम्हारा प्रोडक्ट है, अब अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल देता हूँ नहीं हो रहा है हमसे, क्या करें करेंगे थोड़ा बट वहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट्स की तरफ से डेडलाइंस रहती हैं, तो इट्स लाइक कि भाई अगर 30 तारीख तक नहीं हुआ तो अगले दिन से 2 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, और वो उसको चूसेगा, तुम्हारा मैनेजर तुमको चूसेगा ठीक है, तो वो प्रेशर रहता है, ठीक है। तो अपना अपना लर्निंग है वहाँ पे, अलग अलग अपना माहौल मिल जाता है। और बताओ। सर हम्म, जब आप मतलब जैसे कॉलेज ईयर में थे आपने बताया कि आपको कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे प्रॉपर कोडिंग करने में ही कॉम्पिटेटिव कोडिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, मे भी कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी क्योंकि हमारा भी कंडीशन कॉलेज हमको में वही है। हमको घंटा किसी ने कुछ नहीं बताया था भाई, हम हमें भी अपने सर ऑन सेम। ऑन आवर ओन थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार एक एटलीस्ट मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, है ना। तो या दिस इज द थिंग कि भाई वहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं था, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये यूट्यूब वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अभी तो कंटेंट हाँ सर क्रिएटर्स इस समय काफ़ी तो अच्छे मतलब आ गए हैं, काफ़ी सब हो मिल गया। गया है ना, तो वहीं से सीख लो। तुमको जेंगो देखना नहीं, है तो जेंगो का पूरा सर कोर्स मिल जाएगा। सीखने वीखने का तो ठीक है, लेकिन जैसे आप आपको क्या लगता है मतलब आपके साथ आईआईटीएंस एनआईटीज बड़े बड़े कॉलेज के लोग मतलब जो कि स्टार्टिंग से ही तैयार रहते हैं वो भी काम करते होंगे, आपको अपने उनके बीच में कुछ गैप दिखा कभी? नहीं, बल्कि आई वुड से काफी काफी ज्यादा मेरे को लगता है, देखो मैं बताता हूँ, मैं बिग बास्केट में था तो आई यूज टू टेक अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट से जो लोग आए होते थे उनका इंटरव्यूज लेता था, ठीक है। तो मुझे लगता था यार इनको इतना सा बेसिक बेसिक चीजें क्यों नहीं आता है। तो अगर मैं बताता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग कि होता क्या है, इफ यू जॉइन एमएनसी इन योर वेरी अर्ली स्टेज ना, तुम बहुत ज्यादा क्योंकि वहां सब कुछ प्रोसेस से चलता है, ठीक है। ये है एक कोड मर्ज करने के लिए 2 हफ्ता लग जाता है, ठीक है। और स्टार्टअप में चलता है भाई रुक जा अभी यार 5 मिनट में डिप्लॉय कर रहा हूँ कोड, डिप्लॉय हुआ फटेगा फटेगा देखा जाएगा, ठीक है टेस्टिंग रहती है, कोई प्रोसेस प्रोसेस नहीं होता, तुम एकदम भाई बाप हो तुमने लिखा है कोड, तुम अपने मैनेजर से ही पूछोगे वो बोलेगा कर दो डिप्लॉय देखेंगे तुम कॉन्फिडेंट हो ना, ठीक है। तुम और ऑब्वियसली तुम अभी मैं यहाँ पे अमेजन में आई वर्क ऑन कार्ट टीम, ठीक है, बाय द वे। तो वट एवर यू क्लिक्स ऑन दैट एड टू कार्ट बटन and globally, like not only in India, globally that goes through our team, ठीक है। सो अब मुझे क्या है, मुझे सिर्फ कार्ट का ही नॉलेज है, ठीक है भाई, कार्ट कैसे काम कर रहा है, क्या है, कहाँ है, ये बाकी पूरा रिटेल वेबसाइट कैसे चल रहा है अपने को घंटा नहीं पता है। बट स्टार्टअप में तुम्हें पूरी ओवरऑल पिक्चर दिखती है कि अच्छा यहाँ से रिक्वेस्ट आई, ओके यहाँ पे लोड बैलेंसर पे गई है, ओके यहाँ पे AWS से रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग हो रही है, कुबरनेटिस क्लस्टर में गई है, अच्छा वो सर्विस में क्योंकि सब मिक्स्ड ओनरशिप रहती है, कोई ये नहीं है कि मैं जाके देख नहीं सकता कि पिकिंग कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्ट सर्विस कैसे काम कर रही है, सब एक ही कोड बेस है। बट एमएनसीज में ये चीज़ नहीं रहती, तो तुम्हें कभी वो 20,000 व्यू कभी दिखता ही नहीं है, तुम हमेशा वो नीचे नीचे के में उसमें लगे रहते हो, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि अच्छे स्टार्टअप्स में जाओ, यू विल गेट टू नो ए बिगर पिक्चर, ठीक है। हम लोग तो सर मतलब कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो मतलब आप लोग जैसे इतना बड़ा कोड बेस है, एक हाँ एक सेक्शन पे सब लोग वर्क कर रहे हैं, सर हम लोग तो मतलब छोटे से एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते रहते हैं और गिटहब रेपो में डालने मर्ज करने में ही हालत खराब हो जाती है उसको, हाँ, तो तो वो सब कैसे अपनी मैनेज किस तरह होता होगा सर?
गिट से ही, गिट्स में ब्रांचेस लाइक लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो देयर ना। अब वो किसने बोला भाई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते, तो कभी कभी पूरा दिन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में निकल जाता है। तो या दोज ऑल विल बी, देखो मतलब प्रेशर की तो आदत डाल लो, देखो वो तो रहता ही है ठीक है, वो हमेशा दिमाग में रहेगा ही, सो उससे कहीं नहीं बजाने वाले हो। अ, चलेगा वो, जब जॉब लाइफ में आओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो अभी उतना स्ट्रेस मत लो उस चीज़ों का। हेलो सर। या सर अगर रेफरल के लिए हमको अप्लाई करना है तो हाँ हाँ लिंक्डइन में मैं कोशिश करता हूँ किन्हीं लोगों को मैसेज करने का, बट वो मुझे मैसेज शो करता है लिंक्डइन प्रीमियम करने के लिए। तो मैं हाँ, फिर कैसे उनको मैसेज करूँ सर, क्योंकि उनका मेल आईडी भी विजिबल नहीं होता है कुछ करेक्ट लोग। करेक्ट, तो यार वो लोगों ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते ना यार। बट उसके साथ में और दूसरे पेयर्स देखो ना, जैसे अभी तुम्हें मान लो माइक्रोसॉफ्ट में करना है, पहली चीज तो अपने खुद के कॉलेजेस से देख लो, या वो देख लो, या और कुछ कनेक्शंस में हो उसमें देख लो, इस तरह ओके। से रेफर लो, रेदर देन गोइंग टू एचआर या एक पर्सन के पीछे क्यों भाग रहे हो, है ना। ओके सर। व्हाट एल्स। सर इनिशियल में कितना पैकेज डिसेंट पैकेज होता है? अभी जो जो भाव चल रहा है, ठीक है, तो अभी के भाव के हिसाब से लाइक मेरे कुछ मतलब दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं ऐसे ही, बिकॉज ऑफ लाइक आई हैव कंडक्टेड सम सेमिनार इन देयर कॉलेज, ठीक है। तो वन गाय एक्चुअली वाज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मेरा उसके साथ बातचीत चलता रहता है, तो उसको अभी पहले स्टार्टिंग में 12 का मिला था, तो मैंने उससे बोला रुको यार थोड़ा और एक आध दो कंपनीज में देखते हैं, देन ही अप्लाइड इन फ्यू अदर कंपनीज। तो अभी उसका 21 हो गया था, तो अभी मेरा 25 पे, मैं बोल रहा हूँ रुको 25 लेके जाओ तो या सर चल रहा हमारे है कॉलेज के हिसाब से। कॉलेज के हिसाब से। वो भाई बैंगलोर के एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, और बोलो लाइक प्राइवेट कॉलेज है, लाइक सिंपल, मतलब कोई ऐसा वैसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, जैसे अपने आसपास प्राइवेट कॉलेज नहीं होते, ऐसा सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किल सेट होना चाहिए, इंटरव्यू निकालो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। कंपनीज का एक बेसिक वो होता है, फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू निकालोगे उनका बेस ही 17 लाख है, उससे कम देते ही नहीं है वो, समझ रहे हो। अब यस सर। तुम उनसे बोलो कि मेरे को 7 लाख दे दो, वो कहेंगे भाई हम 17 ही देते हैं, हमारे ऐसे नीचे बैंड ही नहीं है, क्या करें हम है ना। तो ये चीज है, कॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ तो देखो, अब ऐसा है नहीं कि भाई मैं एकदम बहुत हाई होप्स बांध दूं तुम्हारी, ठीक है। तो अब देखो सबका अपना अपना पोटेंशियल रहता है स्टार्टिंग में सबका। मेरा मैं खुद 5.5 से स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली अगर इफ यू गो फॉर द कंपनीज अभी, तो मैं बोलूंगा ना कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, एक बार इंडस्ट्री में आ जाओ, 5 लाख का भी लगे तो आ जाना, 3.5 लाख का भी लगे तो भी आ जाना, टीसीएस इन्फोसिस में जहाँ लगे कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट में स्ट्रगल करो, आ जाना। 1 साल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आ रहे हो, इसके बाद योर स्किल सेट ओनली मैटर्स, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम दे दो, और बढ़िया उस टाइम को यूटिलाइज करो अपने प्रिपरेशन के लिए। सर ये आप जैसे SD1 या SD मतलब जो ऊपर पोस्ट पे जाते जाते हैं मतलब अपग्रेड होता जाता है, तो क्या मतलब SD3 की भी इंटरव्यूज या उन सब चीजों में प्रॉब्लम सॉल्विंग का उतना ही रोल रहता है मतलब? बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें जिंदगी में ना छोड़ेगा तुम हायरिंग मैनेजर का इंटरव्यू दे लो, अच्छा, मैनेजर के। पूछते ही पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा, तो मैं खुद अपने SD1 में पूछे मैं थे। मैं खुद अपने मैनेजर से ये ट्री को वो करवाया था, रिवर्स करवाया था, और बोलो। बाप रे, ये तो अलग है। हेलो ये सर। हाँ बोलो। सर मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हम्म। मैंने सर अपने मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में कोडशेफ का चैप्टर लाया है। ओके। तो जैसे कि वो मतलब ट्रेन करते हैं मतलब हम लोग बच्चों को, मतलब हम लोग भी खुद सीखते हैं और मतलब हम्म इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कोडशेफ की तरफ से। हम्म। तो सर वी वर आस्किंग दैट आल्सो कैन वी गेट योर मेल आईडी आल्सो सर फॉर जस्ट few sessions or 1 or 2 sessions that we can conduct later sir. ये लो यार, मैंने तो मेल तो कर ही दिया था यार, अपने पर्सनल मेल से भी सेंड किया था मैंने, ठीक है। सो दिस इज द वन, shomjnkota@gmail.com, ठीक है। Thank you sir, thank you very much sir. ठीक है, यार देखो क्या है कि मतलब मैं वैसे तो मैं कॉलेज के काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह में हूँ मैं, बट क्या होता है मैं बताया ना, जैसे लिंक्डइन पे ही एक दिन में इतने ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट और वो सब आते रहते हैं, मतलब मैं देख नहीं पाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी एकदम बहुत ज़्यादा रिक्रूटर, सो लाइक फिर बहुत सारे रिक्रूटिंग कंपनीज के कॉल्स आते रहते हैं, मेल्स आते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा, ठीक है। अदरवाइज नो वरीज, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस, ठीक है।
और बाकी आई थिंक सम ऑफ यू आर एक्चुअली कनेक्टेड मी ऑन लिंक्डइन, तो वहाँ पे मेरे मैसेज ऐसे कर दो, आई सम टाइम लाइक 1-2 दिन में देखता हूँ मैं वैसे भी। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन है? सर रेज्यूम में दिखा दीजिए। रिज्यूम दिखा दो, ओके। रिज्यूम में एक सेकंड मेरे को बॉक्स रखा हूँ। इज माय स्क्रीन विजिबल? नॉट येट सर। नॉट येट ना, ठीक है, रुको। शुभम जैन, ये तो बहुत पुराना वाला है भाई। ठीक है, चलो ये तो मैं यही स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। पता नहीं यार, ये पुराना ही है आई गेस ये वाला भी, बट इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, लाइक थोड़ा सा क्रिस्प और वो लगेगा। इज माय स्क्रीन विजिबल? या यस सर। यस सर। ठीक है, तो या एक सेकंड, कहाँ गया यार, रिज्यूम वाला ही कहाँ गया? ओके, ये रहा। ठीक है, सो या ये रहा, एकदम ऊपर से नीचे तक जाता हुआ सीधा सीधा रिज्यूम है। तो फर्स्ट लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में डाल दो, क्या है मतलब, इस तरह से मल्टीपल तुम लोगों को मिल जाएंगे, मतलब सेम लाइक 7 सेकंड रिज्यूमे करके मैंने बोला ना, सर्च करोगे। देन लाइक ये तो तुम्हारे बेसिक चीजें हो गई, व्हाट यू नो। देन इफ यू हैव समथिंग वेरी गुड एक्सपीरियंस इज समथिंग, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन लाइक की ट्रेट्स व्हिच यू हैव। और फिर मैंने बोला ना जैसे वर्क, अब देखो क्या होगा तुम्हारा, ये लिख सकते हो और ये लिख दोगे ज्यादा से ज्यादा 2-5 लाइन। अब अगर ये सेक्शन खाली रह गया तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे रिज्यूमे में, राइट? तो वर्क एक्सपीरियंस यू देन इंक्लूडेड इनटू दैट। अब अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तुम क्या डालोगे, अपने प्रोजेक्ट्स डालोगे कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, ठीक है। एंड देन या तो ये तो मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए। एजुकेशन में या और क्या, डिग्री डाल दी, ये डाल दिया, फिर बस और क्या, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, ये देखो क्या, पता नहीं, मैं तो खुद ही भूल गया हूँ क्या बनाया था नहीं बनाया था, ठीक है। और ये तो पीयूष का प्रोजेक्ट था, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही देख के डाल दिया था आई गेस। रिसर्च पेपर, या देयर दिस इज द लिंक फॉर दैट वन। तो ऐसे अगर रिसर्च पेपर्स वगैरह करना हो तो रिसर्च पेपर्स वगैरह के डाल सकते हो, अवार्ड ऑनर्स वगैरह, बस और क्या यार, मतलब इतना सा वो मत देखो, प्रोजेक्ट्स आर द एक्चुअली मेन थिंग। तो या ये रहा एल्जेवियर वाला, ये था। गुड आफ्टरनून सर। हाय। सर आई एम फ्रॉम 4th ईयर सर। सर हम लोगों ने क्या किया इस बार प्लेसमेंट सेल बनाने के साथ साथ कि हम लोग एक रिज्यूमे फॉर्मेट फिक्स कर दिए हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स का रिज्यूमे एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहे और दिक्कत ना हो। तो सर क्या बिल्कुल, है, एक बार आप फॉर्मेट देख लेंगे क्या? अगर कुछ होगा उसमें तो आप श्योर बता दीजिएगा। श्योर, जस्ट सेंड मी आउट सम 1 or 2 resumes। सर अभी सूरज प्रेजेंट कर देता है सर, अभी अगर आपके पास ओके, अभी टाइम हो तो। या श्योर, मैंने उसको बोल दिया था 5 मिनट अभी, सो ठीक है, जब तक मैं देख लेता हूँ। हाँ सर। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? परफेक्ट, या ये एक बंदे ने मेरे को भेजा है, दीपक गर्ग ने। सो दिस लुक्स गुड एक्चुअली, ये बिल्कुल यही मैं बोल रहा था। हाँ बताओ, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट एवर यू आर प्रेजेंटिंग ना, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं बोल रहा था। यस, दिस इज गुड। ओके सर। तो इसी इफ यू विल सी लाइक मोस्ट ऑफ द आईआईटीज एंड एनआईटीएंस, लाइक यू विल फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ। अब बस मैं ये बोल रहा था, देखो टेक्निकल स्किल्स वगैरह जो है ना, दैट यू कैन मूव अपवर्ड्स, ठीक है, सामने दिखना चाहिए उसको। अभी क्या सबसे ऊपर क्या लिख रखा है, दिखाओ जरा। हाँ देखो, डिग्री विग्री लिख रखी है, इसके नीचे एक्सपीरियंस पे तो वो बाद में आएगा ना, पहले तुम्हारी स्किल्स तो देख ले। अब अगर उसको स्किल्स देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा तो क्या मतलब है? अभी मेरे को एक जावा ओके सर। डेवलपर चाहिए, ठीक है, मैं सिर्फ जावा की प्रोफाइल्स के लिए देख रहा हूँ। अब मेरे को ऊपर ही दिख जाए, अब मैं तुम नीचे जाऊंगा क्या मैं तुम्हारा देखने के लिए कि भाई जावा आती है कि नहीं इसको बंदे को? ठीक है, ओके सर। ओके, Hello, थैंक यू सर। sir. या
सर एज अ इंटरव्यूअर सर आप कैंडिडेट में सर क्या देखते हैं, मतलब कैन यू शेयर? ठीक है, सो एज एन इंटरव्यूअर मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। देखो, अलग अलग, पहली चीज तो अलग अलग इंटरव्यूअर्स की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एज एन इंटरव्यूअर व्हाट आई लुक इन, कि देखो अब मैं थोड़ा सा अलग तरह से लेता हूँ इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्योंकि अब मुझे पता है कि बंदे गीक्स और गीक्स के भी आंसर्स याद करके आ जाते हैं। ठीक है, सो मैं कभी कभी एक्सपेक्ट करता हूँ इस बंदे ने ये क्वेश्चन तो किया होगा। ठीक है, तो इधर आई फ्रेम क्वेश्चन अराउंड इट, थोड़ा सा उसको स्लाइटली डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी तो मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, वो बंदा मेरे को फिर भी वही बता रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने बदल दिया है क्वेश्चन, समझो इस बात को। तो बट फिर भी क्योंकि वो तो वही याद करके आया होता है, तो वो मुझे वही बताता है। ठीक है, एंड तो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा कान वान खोल के सुना करो, सामने वाला क्या कह रहा है, जो तुम पढ़ के आए हो उससे अलग हो। ठीक है, हो सकता है। तो फिर दूसरी चीज है कि अभी समटाइम्स आई नो कि भाई बंदे ने देखा हुआ है क्वेश्चन, करके आएगी सॉरी सर। ठीक है, विच इज फाइन एक्चुअली। ठीक है, इट्स अप टू योर लक ना भाई, तुमने किया हुआ क्वेश्चन अच्छी बात है। सो बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कि हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, मतलब तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, until and unless you actually, if you know the solution well and good, and you should be able to explain the solution, like that is more than enough. Sir, apart from data structures and algorithms, CS fundamentals like DBMS, computer networks और operating system भी सर ज़्यादा फोकस रहता है क्या? देखो, पहला राउंड तो पीएचडीएस ही रहेगा। ठीक है, वो निकाल लो। दूसरा राउंड पीएचडीएस कम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला रहता है। तो डीबीएमएस में तुम्हारे से एक बेसिक, जैसे मैंने बोला ना कि भाई मैंने तुमको एक टेबल दे दी है, राइट ए सीक्वल क्वेरी, उसमें मोबाइल नंबर और नाम है, तो किन लोगों के डुप्लीकेट मोबाइल नंबर्स हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो सीक्वल लिखने बोल सकता है तुमसे। ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा एकदम तुम मन खा होगा तो पूछ लेगा तुमसे, वो एसआई की लेयर बता दो मेरे को, क्योंकि नए नए कॉलेज से पढ़ के आए हो, टीसीपी आईपी के सारे वो बता दो मुझे। तो हो ओके। सकता है, तो जान लो कि अब अगर कोई मतलब ऐसी, और जैसे मैं बोला ना कि अभी एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि भाई व्हेन यू क्लिक ऑन google.com व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन ब्राउजर google.com, तो ओके इस तरह सर। से पूछ सकता है, वो पूरा कवर कर लेगा तुम्हारा पूरा ही सब, पूरा नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग कवर कर लेगा वो। ठीक है, पर देखो गेट इन सबसे बहुत अलग होता है, गेट में अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो एकदम तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज और मतलब क्वेश्चन और करने वाला नॉलेज टेस्ट करता है ना। तो वो एकदम अलग ही स्किल सेट का एग्जाम है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दो नाव पे पैर रखना थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो अगर गेट के लिए कर रहे हो तो फिर उसमें पूरा डेडिकेटेडली करो, उससे इंटरव्यूज निकल सकते हैं। ठीक है, गेट की तैयारी करोगे तो इंटरव्यूज निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत वेराइटी ऑफ वो कवर हो जाता है। बट तुम्हारा जो क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली पीएचडीएस वाले, वो मोस्टली कवर नहीं होते हैं मगर गेट में, तो देख सकते हो वो चीज़ ना। ठीक है, और बताओ, एनीथिंग एल्स, कोई और है? ठीक है, ओके, चलो कोई वो नहीं दिख रहा है मेरे को इधर पे, और कोई क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो या आई थिंक लेट्स रैप अप दिस सेशन। उससे पहले आई एम जस्ट सेंडिंग आउट यू गाइस ये वाला एक फीडबैक वाला। ठीक है, इसको मतलब इसको नॉर्मल फीडबैक की तरह मत ट्रीट करना, ऐसे नॉर्मली मतलब जो भी तुम्हारे मन में आया एनोनिमसली भर दो। अच्छा लगा अच्छा, बुरा लगा बुरा, सही था नहीं था, गालियां देना हो गालियां दे देना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो कंप्लीट कंप्लीट एनोनिमस है, तो मैं इसका ये जो लिंक है तुम लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो भर देना, देखते हैं। एंड अगर कुछ होगा, कुछ कवर करना भूल गया होगा, अगर आगे कभी सेशन करते हैं तो आई जस्ट इंक्लूड इट इनटू दैट। ठीक है, यस सो श्योरली यहाँ पर चैट में मैंने भेज दिया है, तो जस्ट फिल इट आउट। ठीक है, यस ओके, सर। ओके थैंक यू सर गाइस। ठीक है, देन या बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर थैंक यू सर या ओके, इट वाज तो रियली एन सर अमेजिंग सेशन सर। या ओके, या मतलब किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं जो फुलफिल नहीं हुई हो, लाइक मैं कुछ मिस कर गया सर ऐसा हूँ, कुछ भी नहीं यस है ना। हो ही गई। या मतलब मोस्टली डॉक में जो जितना मैंने लिखा था वो सब मैंने कवर कर लिया आई गेस, मतलब सर कभी कभी चांस मिले आपको, जैसे आपका तो शेड्यूल बिजी रहता है, आप यस फ्री सर। हो हाँ कभी कभार तो हाँ तो हाँ मैं, इंटरेक्शन से कर अरे मैं लीजिएगा। ये काफी टाइम से प्लान कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था, कहीं कुछ में आ जाता था, कहीं वीकेंड्स पे भी। अब जैसे आज भी देखो ये डिप्लॉयमेंट था, बट मैं कहा छोड़ो अब बहुत ऐसे सर कुछ सैटरडे को भी प्रॉब्लम। काम करवाते हैं?
सैटरडे को काम नहीं कराते यार। देखो क्या है कि अभी यूएस में वो आ रहा है ना, थैंक्स गिविंग और ये सारा सब कुछ, तो यस सर। पीक टाइम चलने वाला है। बट मैं तुमको अब देखो यार, इस स्केल पे काम करने के थोड़े अलग वो रहते हैं राइट नाउ। तुम्हें पता है क्या ना, अमेजन AWS चलाता है, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो AWS राइट। यस सर। हम लोगों के AWS के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, इतना ट्रैफिक आता है। अरे बाप रे। और दुनिया में कंप्यूटेशन पावर खत्म हो जाता है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने जो इतना रिजर्व करके रखा है अमेजन के लिए, वो खत्म हो जाता है, इतना ट्रैफिक आता है। तो हम लोगों को ऐसे लिवर्स बनाने पड़ते हैं कि भाई एक फीचर डिसेबल कर दो। हो सकता है तुमको अभी अमेजन पे अलग से साइड में कार्ड दिखता है ना, आई डोंट नो इफ यू गाइस लाइक, अभी इंडिया में लॉन्च यस कर सर। दिया है। हाँ लॉन्च कर दिया है गेस ना। हाँ सर, तो साइड में। दैट फीचर इज कॉल्ड एवरीवेयर कार्ड। तो अभी वही चल रहा था। तो वो एवरीवेयर कार्ड का लीवर बना रहे हैं कि भाई अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो उसको पुल आउट कर देंगे। तो वो लीवर को एक्चुअली हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे। तो अब ऐसे वीकडेज में कर सकते थे, बट तो उससे पहले अभी थैंक्स गिविंग और उनका ये सब 1 नवंबर से उनका वो सब कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने कहा पहले से ही तैयारी करके रखो, ठीक है। यस सर। तो स्केलेबिलिटी के अपने इश्यूज रहते हैं भाई, मतलब इसीलिए बड़े स्केल पे, मतलब देखो ये तो तुमने देखा होगा ना राइट, क्यों कॉम्प्लेक्सिटीज पूछी जाती है यार। ये चीज याद रखना, तुम लोगों से पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना। बिग O ऑफ n n स्क्वायर। अब ये बताओ, अब तुमसे मेरे को सॉर्ट ही करवाना था, n स्क्वायर में भी हो जाता तो क्या बुरा था मेरे लिए ठीक है। बट पहली चीज टाइम और दूसरी चीज है रिसोर्स। ये तो चलो लग ही रहा है, बट स्केल पे तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा जब इस स्केल का ट्रैफिक आएगा। सो अभी अगर देखूं तो क्या चल रहा है, 30T। देखो अब क्या बोलूं, अब अगर 30 करोड़ रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है, अब 30 करोड़ रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल करना अपने आप में एक अलग वो सामान रहता है यार। तो यार समझ ही रहो ना यार, क्या हर कोई तो ऐड टू कार्ट कर देता है, मैं क्या बोलूं ठीक है। तो और जैसे ग्लोबल टीम है तो यार ट्रैफिक बहुत हाई रहता है। तो एक यस छोटा सा सर। छोटा सा गड़बड़ किया और दुनिया फट जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा ठीक है। तो स्टार्टअप में इसलिए ये अच्छा रहता है कि बढ़िया आराम से चिल ऑल रहता है। और कितनी बार मैंने, मेरे कुछ डिप्लॉयमेंट के कारण बिग बास्केट बैठ गया, ठीक है, पूरा मेंबर सर्विस बैठ गया। अब मैंने रिव्यू करना भूल गया था ठीक है, तो अब बैठ गया तो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, मैं हाँ बस 5 मिनट दो ठीक है। तो अब वो यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ ना कि हाँ बैठ गया, मेरे कार्ड बैठ गया ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं और स्केल के अपने अलग वो, तो इसीलिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज, अब अगर somebody is not knowing कि भाई क्यों कॉम्प्लेक्सिटीज आर इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाई दोज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो यप, कुछ और हो गया है? आई थिंक इट्स सर, या ठीक है, चलो थैंक यू वो फॉर द सेशन सर। थैंक यू सो मच या सर। श्योर, वो फीडबैक भर देना, ठीक है, मैं देखता हाँ हूँ सर, क्या फीडबैक क्या है, यस यस ठीक है। ओके, या कूल, देन लेट्स रैप अप। यस सर। ओके, तैयारी मगर रखना। मैं अभी भी मतलब सारे पूरे इसका होल क्रक्स देके जा रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर बढ़िया कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब हो जाता है। लैंग्वेज पे ध्यान दे लेना, मैं प्रेफर करूंगा पाइथन या जावा में से कर लो। देखो C++ के साथ इश्यूज हैं यार, वो मगर दिक्कत है ना, वो कॉलेज में तो वही पढ़ाया जाता है तो लोग उसी को परस्यू करने लग जाते हैं। मैं मान रहा हूँ ये बात, बट सही बताऊं तो वो दूसरी लैंग्वेज ज्यादा इजी है यार। थोड़ा सा टाइम लगाओ, कर लो उनको, और और उसमें अच्छे सर एक फाइनल क्वेश्चन था सर। बताओ। सपोज फॉर मी, मतलब मैं C++ में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बढ़िया, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि पाइथन और जावा इम्पोर्टेंट भी है, तो देखो अगर मैं पाइथन में कोडिंग करूंगा कोडिंग इंटरव्यू में, तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को पाइथन लाइब्रेरी से सॉल्व करूंगा तो वो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इंटरव्यूअर ये नहीं बोलेंगे कौन सी मुझे तो। लाइब्रेरी यूज करने की बात कर रहे हो, बताओ। मतलब सर पाइथन में सर्टेन लाइब्रेरीज अब तुमसे हीप इम्प्लीमेंट करने बोला हो, हीप इम्प्लीमेंट करने बोला और तुम हीप क्यू को यूज करके इम्प्लीमेंट कर दो तो मना ही करेगा ना वो ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो बेसिक लाइब्रेरीज अवेलेबल, लीड कोड पे जाते हो तो बेसिक पाइथन में जो लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं वही यूज करनी रहती है, ठीक है। अगर है भी, और देखो ओके ठीक है, मैं प्रणव भाई मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ। देखो C++ में तुम बढ़िया हो, अच्छी तुम्हें आती है, तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर पाते हो, बढ़िया बात है, और तुम्हारा कोड बहुत फास्ट रन होता होगा, मेमोरी भी कम लेता होगा, बढ़िया चीजें हैं, ठीक है। यस सर। एग्रीड, बिल्कुल। अब मुझे तो पर यार देखो, आज का अगर वर्ल्ड देखोगे तो सब ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, ये सब अनशन काम कर रहे हैं,
ठीक है, वो बड़ा मार्केट है। देखो मैं मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस जॉब नहीं है, नहीं तो कल को तुम लोग आगे बोलो अरे शुभम सर तो आए थे बोले थे, और बाकी आसपास मेरे वाले जो सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं वही मेरे को आगे गालियां देने लगे। ठीक है, तो अब मैं मार्केट की साइज की बात कर रहा हूँ। मार्केट साइज बड़ा इन सब चीजों में वाले हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट और इन सब में है, ठीक है, मार्केट थोड़ा बड़ा है। अब उनको चाहिए फ्रेमवर्क, एक वेब फ्रेमवर्क चाहिए, सी प्लस प्लस में है पर उन पे कोई काम नहीं करना चाहता, उतने मैच्योर नहीं है। जावा का स्प्रिंग बूट अगर तुम देखोगे तो पूरी दुनिया ही समा गई है उसमें, ठीक है, यस सर। इजी टू लर्न है, फटाफट बन जाता है। स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, फटाफट दो, जल्दी डिप्लॉय करो, काम खत्म हो। जैंगो के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी आ जाती हैं, साला कोई एडमिन पैनल बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद दे दिया है। सीक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, उनका खुद का क्वेरी सेट बना के लिख डालो, कोड की तरह ही चल जाता है अपने आप, उसमें ORM लगा हुआ है, चिपका देता है सीक्वल। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है, इसलिए इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। बट अब दिक्कत ये ना कि एज ए फ्रेशर, अब मैं, तुम सी प्लस प्लस से आ रहे हो, तुम्हें मैं जावा और पाइथन सिखाने का लोड भी अपने सर पे ले लूं, वैसे ही मेरे को बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें, यस। है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बस, और कोई ऐसा कोई मेरे को बहुत नाराजगी नहीं है सी प्लस प्लस पे, पर ऑल दो मुझे घंटा नहीं समझ में आती थी। ठीक है, बट ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, मैंने अपने खुद इंटरव्यू सी सर प्लस प्लस में दिए थे। हाँ, सर जैसे लास्ट ईयर में स्विच कर सकते हैं जावा पे, मतलब अभी अरे हम कोई सीए फर्क और नहीं पड़ता। देखो मैं एक बात बताता हूँ तुमको, बढ़िया चीज ना, तुम्हें अगर, मैं आज भी जावा में काम करता हूँ, अच्छा मैं तुमको अपना बताता हूँ ना, मैं पहले सी में लिखता था, सी प्लस प्लस में, सी में तो कभी नहीं लिखा, सी प्लस प्लस में। मैं पहली कंपनी में आया, वो मेरे को बोले जावा स्क्रिप्ट करो, भाई मैंने कहा चलो जावा स्क्रिप्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलते हैं कि यार अब तुम फ्रंट एंड साइड पे तो कर दियो जावा स्क्रिप्ट में काफी बढ़िया काम, तुम सी शार्प में स्टार्ट करो, हमारा बैकएंड सी शार्प में लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, करते हैं, कुछ करा जाएगा, देखेंगे। वहाँ किए। फिर बिग बास्केट आया, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पाइथन में किया था। तो बिग बास्केट आया, बोलते हैं कि यार पाइथन हमारा तो पूरा फ्रेमवर्क पाइथन का है, तो मैं कहा यार आता है इतना तो देख लेंगे। वहां से पाइथन का जर्नी स्टार्ट हो गया। अब बिग बास्केट तो उस टाइम पे स्टार्टअप की तरह ही काम करता था, अभी भी स्टार्टअप ही है ऐसे देखा जाए तो, है ना। तो बोलते हैं यार एक नोड की सर्विस है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो देख लो। ठीक है लाओ, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है, घंटा का भी किसी नोड में काम नहीं किया है, जानते ही नहीं है, लिख रहे हैं, बढ़िया, ठीक है देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने रियलाइज किया है, लैंग्वेजेस अपनी जो टिपिकली बात करने वाली लैंग्वेज है उससे बहुत डिफरेंट है ये वाली, ठीक है। अब अगर तुम मेरे को बोलो कि यार शुभम यार एक कोड बंगाली में लिखा हुआ है और उसको पढ़ के बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सिंटैक्सेस देखूंगा, उसको लिख के देख लूंगा, पता चल जाएगा क्या होता है, क्या अंतर होता है, फॉर लूप बदल जाती है, सिंटैक्सेस ही तो बदलते हैं, क्या लॉजिकल पार्ट कुछ बदलता है क्या लैंग्वेजेस में, नो सर। है ना। तो ठीक है, बस थोड़ा सा इनिशियल चीजें रहती हैं, वो बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ ईयर में क्या बोल रहा हूँ मैं, तो अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ। अब बताओ, अब मैंने तो जिंदगी में टाइप स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, अबे वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, एक चीज पे चिपक के नहीं रह सकते, चिपक के रह गए, जहां चिपक के रहे वहां तुम्हारा काम हो गया। यहाँ लोग एकदम घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं, ये इंडस्ट्री ही बहुत तेज ऐसा तो हो दौड़ती है। सकता है ना कि जैसे मान के चले कोड हम सी प्लस प्लस में लिख के देते हैं, जैसे बीएस और इन सब का ग्राउंड होगा हाँ उसके लिए, और हाँ वैसे जावा का मतलब सिंटैक्स हम जानते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब दिक्कत ये है उसके साथ, वो बंदा तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को एक जावा डेवलपर मिलेगा, पर तुम सी सी प्लस प्लस में वो कोड दोगे, वो मान सकता है बहुत से केसेस में, बोलता है कि हाँ ठीक है, वो तुमसे 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जावा के पूछ लेगा, बट बोलेगा यार ये तो साला बेसिक फॉर लूप लिखने बोला था मैंने तेरे को अब यही तो जावा में नहीं लिख पा रहा है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। वो तो सब बेसिक सिंटैक्स में कवर हो जाएगा ना, बेसिक हाँ फॉर लूप के, और बस, जो भी तो फिर सिंटैक्स जो चीजें ऐसा होगी। ऐसा बहुत बड़ा चीज है, तुम क्या करते हो जो तुम्हें सी सी प्लस प्लस में ही लिखना है इंटरव्यू के टाइम पे भी। पर लाइब्रेरीज होती हैं जैसे, और कुछ कुछ चीजें, लाइब्रेरीज तो कोई यूज होती नहीं है भाई, बताओ जैसे बताओ। जैसे सी प्लस प्लस में एसटीएल होता है, हाँ उसी तरह एसटीएल जावा। वेक्टर यूज हाँ करते हो तुम, है ना। हाँ, yes। यहाँ पे वो डायरेक्टली अवेलेबल है भाई, उसमें लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यही तो दिक्कत है। सर क्या है ना कि हमने उस लैंग्वेज से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, तो एक हाँ हाँ। तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं ये लैंग्वेज कर रहा हूँ ना, तो हाँ थोड़ा बस कर सकता हूँ। और जैसे जावा है तो उसके अंदर थोड़ा देखना पड़ता है, बस बात ये है, कोई बाकी दिक्कत नहीं, कोई सिंटेक्स दिक्कत विंटेक्स नहीं तो है, पता देखो रहता है सर। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, देखो क्योंकि मैं खुद जब इंटरव्यू देता हूँ तो मैं जावा में कर लेता हूँ, बट मैं पाइथन में बहुत मतलब प्रोफिशिएंट हूँ उस टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे तो मैं पाइथन में देता हूँ।
तो कोई मेरे से पूछता जावा, मैं कहा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट पाइथन में प्रोफिशिएंसी है अपनी तो बढ़िया है, वो चल जाता है फॉर मी इट वर्क। तो बट तुम्हें दूसरे सामने वाले का भी देखना पड़ेगा ना कि भाई सामने वाला कंफर्टेबल। मैं उनसे पूछ लेता हूँ यार मैं पाइथन में कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। बड़ी बड़ी कंपनीज को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसी में लिख जाओ, तुम जावास्क्रिप्ट में लिख जाओ, उनको लॉजिक से मतलब होता है। बट यहीं पर तुम अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी का दे रहे हो तो उसको वो बोलेगा नहीं भाई अब उनको तो जावा ही चाहिए यार, C++ की तो ओपनिंग ही नहीं है। समझ रहे हो निशांत भाई? यस सर, समझ गया ओके सर। तो अरे मैं कह रहा हूँ कि इतना इतना लोड मत लो यार, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, 6 महीना बहुत ज्यादा समय होता है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज किसी को करने के लिए एक चीज पकड़ लो, उसके साथ लग जाओ। दिक्कत ये ना फ्रेमवर्क्स आने पड़ते हैं यार आजकल, क्या हो गया है ना, जैसे अगर तुम जावा में हो तो स्प्रिंग बूट सीख लो, सीधी बात, नो बकवास। और अगर पाइथन में हो तो जैंगो सीख लो, ये तुम्हारा आधा चीजें क्लियर करा देगा। सर नोड का यूज नहीं होता क्या अमेज़न में, मतलब नोड जनरली? होता है भाई, नोड होता है, मेरी सर्विस नोड में ही लिखी हुई है। एक्सप्रेस, तो फिर तुम एक्सप्रेस सीख लो, है है ना, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, ठीक है। सर वो जावा में है तो क्या सीखने को बोले हैं? स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बोट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और कुछ? 2 घंटा हो सर गया यार। पाइथन आती है तो जेंगो सीखने में कितना टाइम लगेगा? पाइथन अब देखो यार, रातों आज रात दोबारा से नहीं सीखोगे तुम, है ना। जाएंगो सीखने में अब लगभग 2 हफ्ते तो मान के चलो, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जांगो का डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छा है और यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत हैं, स्प्रिंग बूट के उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो जांगो का वो जो पोल ऐप बनवाते हैं वो बनाओ, तुमको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद सर अपने मैं मेरे, हाँ बताओ। सर मैं पाइथन किया था तो उसमें फिर मैं वो उसमें घुस गया था, पेंडास, नमपाई, ओपन सीवी, इन सब में घुस गया, हाँ अभी तो जेंगो बनती नहीं है। हाँ तो अब देखो, अब तो फिर तुम्हें डेटा साइंस वाला पार्ट देखो अपने लिए, अगर तुम्हें उसमें मजा आ रहा है बहुत, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड डेटा साइंस, ठीक है। तो वहाँ उस साइड पे देखो फिर अपने करियर में, दैट इज डेटा साइंटिस्ट अपने आप को बनाने की कोशिश करो, राइट। यस सर, बस उसमें स्टैटिस्टिक्स बड़ी लग जाती है। अरे तो फिर यार देखो यार, अब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि साला मैथ्स पढ़ना पड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो देखो इंजीनियरिंग की है, साइंस के स्टूडेंट हो, 12वीं में तुमने मैथमेटिक्स ली थी, तो वो रहेगी तो सही। अब किस लेवल की चाहिए तुम्हें वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी और मतलब तुम्हारे वर्क टू वर्क, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं लग रहा कंफर्टेबल तो अभी भी देखो, स्टार्टिंग मैं बोल रहा हूँ मतलब, पर इनिशियल 2 साल हो गए, इसके बाद कैरियर स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए, और एक चीज मैं तुमको बताऊंगा वैसे, एक बैकएंड इंजीनियर ना मोस्टली बाकी सब रोल्स में कंफर्टेबल हो जाता है। अभी मेरे को कोई बोले कि डेवऑप्स में चले जाओ, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एज ए बैकएंड एज एन स्टार्टअप में काम करके मेरे को मोस्ट ऑफ द पिक्चर पता ही है, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है। अगर मेरे को चेंज भी करना हो तो मैं चला सकता हूँ, बट वो लोग इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा एक वाइड अमाउंट ऑफ नॉलेज रखना स्टार्ट करो पहले इनिशियली, बाद में पीपल प्रेफर एसएमईज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, लाइक इन स्लैंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। यस सर। ओके, चलो खाना वाना खा लिया है क्या, नहीं खाया पता नहीं। नहीं सर, अभी खाएंगे। हाँ तो बस अब चलो यार, बहुत हो गया और क्या। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। ये सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक्स, सर। थैंक यू सर। बाय। एंड डू शेयर दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ना, ठीक है, जो नहीं आ हाँ पाए हाँ, मिस यस किया, सर। यस सर यस सर, सर, सैटरडे रिकॉर्ड हो ट्राई गया करेंगे सर कि ये। अपलोड करें। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू या सर।